Alright, assalamualaikum everybody. This is a recorded lecture where we are going to be basically dissecting into all the concepts which we have been discussing till this point. In the very last class, we ended the concept of procedures where we were basically looking into what procedures are, and how and why perhaps we make use of procedures, which to this point is very much clear that we don't want to rewrite code again and again. And so what we do is that write the code once, give it this name, a specific name under the procedure terminology, and जब उसको वो नाम assign हो जाता है तो whenever I'm kind of calling it, वो directly program को पता लग जाता है कि this person is basically trying to say कि वो specific code जो मैंने maybe line number 2 पे लिखा था उस code को फिर से re-execute करो. And so you're not required to rerun the code again and again. Then we went on to how you can have a parameter within it and parameter ki functionality and stuff like that. Today we are going to be basically dissecting into one other key concept, which is basically known as functions. And now you might be wondering what functions are. So in yesterday class, मैंने start ही आप लोग के function के साथ ही किया था. If you remember, I told you one thing. We have these mathematical functions, right, where I say like if f of x is equal to x square, and then you kind of give it an input. Okay, you give it an input and then you get an output, right? Like if I say f of 2, so you know that this will be executed as like 2 square, which is basically going to be 4, and that's going to be your answer. And just like that, computer programs can there be function ka concept like but it was kind of based on this model where you're going to be giving it an input, then it's going to be processed, and then it's finally going to output or return. But in this whole thing has also been processed at the same time within just a minute, एक second, is the recording up here on? Never mind, इसको छोड़ दो, let me end the call forever. Yeah, but so I was trying to explain कि किस तरह this thing has been implemented within the world of computer science using this functions and procedure model. अब अगर हम procedures और functions को generally देखें, it's kind of the same thing because functions also have the same purpose कि you don't need to rewrite code. You don't rewrite code. Like for instance, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप एक function बनाओ जिसके अंदर आप ना जो भी आपके पास नंबर आ रहा है उसको वो 3 times मल्टीप्लाई करके आउटपुट करें. लाइक फॉर इंस्टेंस इफ आई से कि एक नंबर है, आई टेक द इनपुट ऑफ अ नंबर, इनपुट x, सही है, एंड देन आई हैव टू क्यूब दिस नंबर. ओके, आई हैव टू क्यूब दिस नंबर. सो लाइक मे बी आई कैन से लाइक आंसर एक वेरिएबल आप बना लो, उसके अंदर आप असाइन कर दो x मल्टीप्लाई बाय x multiply by x, or what I can do is I can also write it as x raised to power 3. सही है, लेकिन I personally advise doing this one, and then what you do is कि आप लिख दो output x. बट what if आगे मैं कोड के अंदर यही चीज़ मैंने 1000 दफ़ा करनी है तो मैं हर दफ़ा ये कॉपी थोड़ी कर सकता हूँ. सो व्हाट आई कैन डू इज़ मैं इसको एक नाम दे दूँ कि फंक्शन बना दूँ, एंड या फिर मे बी प्रोसीजर बना दूँ. नाउ द होल थिंग, द सेम थिंग कैन कम अप एज अ प्रोसीजर टू एंड एट द सेम टाइम कैन बी टर्म्ड एज अ फंक्शन. देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस जो इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड अ प्रोसीजर. बट लेट्स से अगर इसको मैं प्रोसीजर के तौर पर बनाना चाहूँ तो प्रोसीजर क्या करेगा, आई विल बी लाइक प्रोसीजर, देन आई विल बी गिविंग इट अ नेम प्रोसीजर, फिर मैं उसका नाम दूंगा विच विल बी व्हाट, उसका नाम दूंगा मैं लेट्स से क्यूब, एंड देन ब्रैकेट के अंदर मैंने आपको बताया था क्योंकि इसके अंदर हम इनपुट ले रहे हैं, दिस इनपुट इज समथिंग जो कि हम स्पेसिफाई करेंगे और व्हाट आई एम गोइंग टू बी कॉलिंग एज अ पैरामीटर, इन दिस केस पैरामीटर. सो इसको मैं करने के लिए मैं क्या करूँगा, बट आई विल बी बेसिकली डूइंग अप हियर इज कि मैं क्यूब के आगे जो इसका नंबर लूँगा, लेट्स से नम कर लो या फिर x कर लो, ऊपर x है तो यहाँ पे भी x कर लो, x के डेटा टाइप को स्पेसिफाई कर दूंगा विच इज़ बेसिकली गोइंग टू बी एन इंटीजर. एंड आफ्टर डूइंग दैट व्हाट आई विल बी बेसिकली डूइंग इसके मैं प्रोसीजर के अंदर कोड को लिखूंगा विच विल बी लाइक आंसर को आप सबसे पहले, क्योंकि इट्स अ प्रोसीजर, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं जो भी कोई नए वेरिएबल को ला रहा हूँ किसी प्रोसीजर या फंक्शन के अंदर, आई विल बी डिक्लेयरिंग इट. सो आई विल बी लाइक ओके डिक्लेयर your variable which is basically going to be answer, and that is going to be of the data type integer. एंड वंस वी हैव दिस, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू बी डूइंग इज कि मैं एक आंसर वेरिएबल के अंदर जो ऊपर मेरी वैल्यू है उसका क्यूब कर दूंगा, विच बेसिकली मीन्स आई हैव द वैल्यू एज x, राइट. सो x मल्टीप्लाई, ये दिस साइन इज बेसिकली asterisk. सो इन कंप्यूटर साइंस यू मल्टीप्लाई, the multiplication sign is basically shown by this is asterisk, and asterisk is the symbol जो कि अगर आप shift 8 को दबाएं ना, shift plus 8, तो जो आपके कंप्यूटर के ऊपर आता है this is asterisk. So usually in computer science a multiply x does not indicate multiplication, it's this sign. Okay, so x into x, and then again it's like a cross and then like this x, and then what you're going to be doing is you will be like okay output
answer, and then at the end procedure. Now this is what we call as a procedure. Right now अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि आप एक नंबर है जिसका आपने प्रोसीजर निकालना है, सॉरी आपने उसका क्यूब निकालना है, तो रादर देन अगेन एंड अगेन राइटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन डिक्लेयरिंग अ डिफरेंट आंसर वेरिएबल एंड आउटपुटिंग इट, आई कैन डायरेक्टली बी लाइक ओके कॉल, एंड कॉल के अंदर मैं बोल दूँ, आपने कॉल करके बोल देना है क्यूब, एंड क्यूब के अंदर मैं डाल दूँ 5. सो व्हाट विल दिस बी एग्जीक्यूटिंग, ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा आंसर के अंदर, ये करेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज़ बेसिकली गोइंग टू बी गिविंग मी द आउटपुट वैल्यू ऑफ 125. एंड द मोमेंट आई एग्जीक्यूट दिस कोड यू आर गोइंग टू लुक कि इसी के अंदर हमारे पास एक स्टेटमेंट है आउटपुट आंसर की, विच मीन्स कि इस स्टेटमेंट को जैसे ही कंप्यूटर रन करेगा ना, आपकी ये वाली लाइन रन हो जाएगी एंड ऑन टू योर स्क्रीन यू विल सी कि आपके पास 125 प्रिंट हो जाएगा. नाउ द सेम थिंग कैन ऑल्सो बी डन विद अ फंक्शन, राइट, बट फंक्शन एंड प्रोसीजर्स में एक फ़र्क है. You see यहाँ पे ना the computer is giving an output. It is kind of giving it an output. It is giving it an output, right? But what if I want a specific code जो कोई output ना दे लेकिन किसी variable के अंदर value store कर दे. Like for instance अगर ये cube का आंसर है, ये मैं बोलना चाहूँ कि अगर मैं एक function बना लूँ जिसको मैं बोलूँ कि अगर उसका जो cube है, if this cube if it's greater than 100, if it is greater than 100, तो मेरे पास एक वेरिएबल है, let's say maybe greater 100 G100 मतलब greater than 100, इसके अंदर आपने वैल्यू असाइन कर देनी है ट्रू. इफ़ इट्स लेस देन 100 तो आपने इसके अंदर वैल्यू असाइन कर देनी है फॉल्स. Now the function, the difference between a procedure and a function is that a procedure does not return anything, right? It is directly outputting the value. देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट हो रही है, वेयर एज अ फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू. सो बाय रिटर्न आई मीन कि अगर इस कोड को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर यहाँ पे मैं आउटपुट ट्रू कर दूँ फिर तो स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ आ रही है. बट व्हाट इफ़ आई वांट दैट वैल्यू फ्रॉम दैट स्पेसिफिक फंक्शन टू बी असाइन टू समथिंग. तो व्हेन आई वांट टू असाइन द वैल्यू टू समथिंग, दिस इज बेसिकली इंडिकेटिंग कि यू आर ट्राइंग टू रिटर्न अ वैल्यू, मतलब आप कोई वैल्यू रिटर्न करना चाह रहे हो. रिटर्न द वैल्यू टू मे बी अ वेरिएबल, रिटर्न द वैल्यू टू मे बी सम कॉम्पोनेंट, मे बी टू सम डेटा स्ट्रक्चर. तो जब भी आप कोई कंप्यूटर के ऊपर वैल्यू नहीं लाना चाह रहे स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस कोड को देखें, आई सी दैट 125 इज बीइंग कमिंग ऑन माई स्क्रीन. बट इफ़ आई want to ensure कि यार ये 125 जाके कोई वेरिएबल y है उसके अंदर 125 आ जाए, and then I might be later on outputting y, तो this is a function. So the biggest difference अगर आपसे कभी एग्जाम में आके वो पूछते हैं what's the difference between procedure and function, even though they may seem like exact identical copies of each other, so you will be like a function returns a value, whereas a procedure never returns a value. मतलब मैं कभी ये नहीं बोल सकता कि अगर मैं ये बोलूँ कि देर इज़ दिस वेरिएबल x एंड x के अंदर आप ये कर लो कॉल क्यूब 2, ये दिस इज़ नॉट समथिंग विच अ प्रोसीजर कैन डू. अ प्रोसीजर कैन नॉट डू दिस. वाई? बिकॉज कैन नॉट do this. Why? Because the main reason behind why a procedure cannot do this is कि ये जो मैं यहाँ पे जो एक्शन लेना चाह रहा हूँ ना, this is basically return. Like हम एक फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये, and it is kind of returning the value to this variable. So this step is basically of return, and this return is something which a procedure can never do. So in this scenario we came up with a function, we came up with the concept of function कि like अगर मैं x के अंदर कोई फंक्शन बना लूँ, let's say function x एंड उसके अंदर मैं 2 कर दूँ, सो दिस इज बेसिकली गोइंग टू रन, बिकॉज यहाँ पे जो इस फंक्शन के जो भी कोड होगा, जो भी ऊपर की तरह एग्जीक्यूट होगा, द वैल्यू विल बी रिटर्न टू x. नाउ वी आर गोइंग टू बी मेकिंग यूज ऑफ सम कीवर्ड्स विच विल क्लियरली इंडिकेट कि यार ये मैं फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ या फिर मैं प्रोसीजर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन विल ऑलवेज मेक यूज़ ऑफ द कीवर्ड रिटर्न. व्हेन एवर आई से रिटर्न समथिंग, तो इट मीन्स कि आपकी ये वैल्यू जो यहाँ पे है ना, ये कभी स्क्रीन पे रिटर्न कभी नहीं होती. अ वैल्यू इज़ नेवर रिटर्न ऑन टू द स्क्रीन, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी रिटर्न टू समथिंग जिसको थ्रू वो असाइन किया जा रहा है. अगर मैं सिर्फ कर दूँ ना, लेट्स से कंप्यूटर के ऊपर फंक्शन x2 एंड आई लेट्स से डू नॉट असाइन इट टू समथिंग, लाइक यहाँ पे मैं कोई y के अंदर असाइन नहीं करता, बस यही सिंपल लिख लो. अब मैंने ऊपर तो देख लिया कि जब मैं कॉल क्यूब 5 वैसे ही रैंडम लिख लेता हूँ तो मेरे कंप्यूटर के ऊपर 125 आउटपुट हो जाएगा. बट अगर मैं फंक्शन x2 को इसी तरह लिख दूँ, मेरे स्क्रीन के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं आएगी, बिकॉज रिटर्न इज नॉट इक्वल टू आउटपुट.
तो आउटपुट और रिटर्न में फ़र्क है, एंड दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन योर प्रोसीजर्स एंड फंक्शन. सही, या आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गई है. इफ इट्स नॉट क्लियर तो यू कैन डेफिनेटली जस्ट हिट मी अप एंड आई विल गेट टू यू ऑन इट. नाउ हाउ डू यू डिक्लेयर अ फंक्शन? नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर इज़ अ प्रॉपर वे टू ऑलवेज डिक्लेयरिंग अ फंक्शन. तो जस्ट लाइक प्रोसीजर, आप लोग का सबसे पहले कीवर्ड विल बी फंक्शन ऑन इट्स ओन. सो यू गोइंग टू बी राइटिंग फंक्शन एंड देन आफ्टर फंक्शन आपने उसका नाम लिखना है. सही है, आप उसको लिख दोगे नेम. And after name, just like procedure, क्योंकि function is always going to take some sort of value, right? मैं function cube बना रहा हूँ तो cube किस नंबर का लेना है, अगर वैल्यू नहीं है तो वो अलग बात है, लेट्स से. लेकिन अगर आपने इसके अंदर कोई वैल्यू करनी है तो हम यहाँ पे डाल देंगे ब्रैकेट एंड वहाँ पे आप कर दो पैरामीटर नेम एंड देन इट्स अ कॉलन फॉलोड बाय डेटा टाइप bracket close. And now what you're going to be doing is कि because we discussed कि यार it is always going to be returning something, तो हमने ये भी तो बताना है कि यार ये जो x जिसके अंदर ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो किस डेटा टाइप की वो करेगा. लाइक ऐसा ना हो कि मेरा x इज बेसिकली एन इंटीजर एंड उसके अंदर जो मैं डेटा टाइप असाइन करूँ वो मे बी ABC हो, विच इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम दिस फंक्शन. दैट इज गोइंग टू टेंड टू गिव अस एन एरर, राइट? सो टू प्रिवेंट दिस व्हाट वी कैन डू इज कि बाय द टाइम व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग अ फंक्शन, उसी टाइम ही मैं यहाँ पे कर दूँ स्पेसिफाई कि यार दिस इज बेसिकली going to be returning returns a specific data type. So returns and आगे data type बता दो कि कौन से data type की वैल्यू वो रिटर्न करेगी. सही है, अब ये तो मैंने लिख दिया. आगे मैंने जो भी कोड करना है ना वो कोड मैं यहाँ पे कर दूंगा. सही है, कोड एंड कोड करने के बाद मैं यहाँ पे जो भी मेरे कोडिंग हुई उसको मैं लिख के आखिर में जो आंसर जैसे ऊपर मैंने आउटपुट किया ना कि आपने स्क्रीन के ऊपर ये कर देना है, तो जब मैंने कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन करनी होगी ना जो फाइनल, उससे पहले जो कीवर्ड मैं लिखूंगा ना दैट विल बी बेसिकली रिटर्न. सो यू विल बी रिटर्न एंड देन यू विल बी लाइक ओके रिटर्न सम वैल्यू एंड आफ्टर दैट आपने एंड में लिख देना है एंड फंक्शन. अब इट मे सीम लाइक अ बिट you can say confusing at the first glance, but it's not. Why? Because just have a look at this. It's pretty much very straightforward. Now what if I tell you कि यार make a function that converts Celsius के अंदर temperature from into like what do we call it, क्या कहते हैं, सेल्सियस के अंदर आपने कन्वर्ट करना है फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम फ़ारेनहाइट. सो अगर मैंने फ़ारेनहाइट से सेल्सियस के अंदर करना है तो व्हाट विल आई बी डूइंग. सो द मैथमेटिकल फार्मूला टू डूइंग दिस इज़ कि आपने जो आपके पास फ़ारेनहाइट के अंदर वैल्यू है ना टेम्परेचर, उस टेम्परेचर से आपने बेसिकली 32 सब्ट्रैक्ट कर देना है एंड आपने इसको डिवाइड कर देना है 1.8 के साथ. नाउ दिस इज़ द मैथमेटिकल फार्मूला मैथ. लेकिन अब आपको अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया जाए टू राइट एन एल्गोरिथम विच मेक्स यूज़ ऑफ अ फंक्शन जो कि ये काम कर रहा है, तो वो आपको फार्मूला हमेशा देंगे, बट यू नीड टू मेक यूज़ ऑफ द लॉजिक नाउ. क्योंकि अब वो आपको बोले कि फंक्शन नाउ लाइक द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स कि अगर वो ये बोले कि फंक्शन और आगे वो डाल दे 82, तो आपके जो क्वेश्चन है अगर इसको मैं असाइन कर दूँ x के अंदर, सो इफ व्हेन आई से आउटपुट x तो आई शुड बी गेटिंग द वैल्यू इन सेल्सियस, राइट? सो अब इसको रन कैसे करना है उसके लिए हमने जो कोड लिखना है वो क्या होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डेफिनेटली नो कि आई एम गोइंग टू बी मेकिंग यूज़ ऑफ अ फंक्शन बिकॉज मे बी इन द एग्जाम वो हमें बता दे कि यू नीड टू मेक यूज़ ऑफ अ फंक्शन. सही है, फंक्शन. अब हाउ विल आई बी मेकिंग यूज़ ऑफ इट? आई एम गोइंग टू बी राइटिंग द कीवर्ड विच विल बी बेसिकली फंक्शन. नाउ आई विल बी राइटिंग द नेम, राइट? सो मैं नाम क्या डालूँ? लेट्स से मैं डाल दूँ सेल्सियस, क्योंकि हम कन्वर्ट ही सेल्सियस में कर रहे हैं तो हम बोल देते हैं कि सेल्सियस. नाउ आफ्टर दिस हमें पता है कि मैंने ब्रैकेट लगा के क्या करना है, पैरामीटर की डेटा टाइप डिफाइन करनी है. मैं पैरामीटर क्या ले रहा हूँ, ये फंक्शन इफ आई से सेल्सियस 78, तो व्हाट इज दिस 78? दिस इज बेसिकली माई टेम्परेचर इन व्हाट, इन फ़ारेनहाइट, राइट? एग्जैक्टली, इट्स माई टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट. तो मैं सेल्सियस के बाद यहाँ पर लिख दूंगा लेट्स से टेम्प यूजुअली अगर मैं लिखूँ तो उसका एक मसला है क्योंकि टेम्प इज़ यूजुअली टेम्पररी के लिए, जिस तरह हमने बबल सॉर्ट में देखा. सो इट्स बेटर टू राइट द फुल नेम हेयर ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो कि यू आर नॉट ट्राइंग टू रेफर टू टेम्पररी बट इट्स लाइक टेम्परेचर. एंड टेम्परेचर इफ यू सी टेम्परेचर कैन बी लाइक एन इंटीजर अगर हम 76-77 ले, बट व्हाट इफ आई एम लाइक 76.4 फ़ारेनहाइट. तो जब मेरे पास पॉइंट वाली बात आ जाएगी तो यू रिमेंबर हमने पॉइंट्स के लिए पढ़ा था द डेटा टाइप इज गोइंग टू बी रियल, इट्स नॉट गोइंग टू बी इंटीजर. सो आई नो कि यहाँ से मेरे पास ये होगा एंड डेफिनेटली कि अगर मेरे पास फ़ारेनहाइट पॉइंट्स में आ सकते हैं तो मेरे पास जो सेल्सियस की वैल्यू होगी वो भी तो पॉइंट्स में आ सकती है. तो आई बी लाइक रिटर्न भी आपने रियल में ही करना है. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आई गेट द फाइनल टेम्परेचर एज लाइक 32.4 सेल्सियस, राइट? तो उसके लिए मैं पॉइंट्स को भी डील इन करने के लिए इस पॉइंट को इस तरह लिख देता हूँ. नाउ अब मैंने ये करना है किसी लेट से वैल्यू आंसर के अंदर स्टोर करना है, तो डेफिनेटली आई नीड टू डिक्लेयर आंसर
And if I'm making use of two real values into calculation where I will be basically making adding or maybe dividing and performing a calculation on two decimal points, तो इसका मतलब है कि आंसर के अंदर भी डेसिमल पॉइंट स्टोर होने चाहिए. सो आई विल बी लाइक ओके आंसर की भी डेटा टाइप आप रियल कर दो. नाउ लेट्स परफॉर्म द मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो हमने ऊपर पढ़े. आई विल बी लाइक ओके आंसर के अंदर आपने क्या करना है, यू नीड टू असाइन द वैल्यू ऑफ व्हाट, यू नीड टू असाइन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पूरा. अब यहाँ पे आपने टेम्प नहीं लिखना, जो ऊपर लिखे वही यही लिखना है, एग्जैक्ट सेम टू सेम, वरना मार्क्स आपके कट जाएंगे. -32 एंड देन यू नीड टू डिवाइड दिस बाय 1.8. नाउ इस सब की वैल्यू कहाँ पे जाएगी, ऑल द वैल्यू ऑफ दिस इज गोना गो इनटू दिस आंसर वेरिएबल. एंड नाउ एट द एंड बिकॉज आई नो कि मैंने जिस चीज़ के साथ भी इसको फंक्शन को वो करना है, इट हैज़ टू रिटर्न सम वैल्यू. सो आई विल बी लाइक यू नीड टू रिटर्न what? I need to return the value of answer. So return ANS into whatever variable, whatever data structure I'm basically returning the value into. Say to function, and now I will be like end function. And now the moment I write this, you see the good part is कि now if I'm like saying कि मेरा code complete हो गया. Now अगर मैं ये लिखूँ Celsius 79.4, तो ये जाके it is going to run, it will run, but it will never output anything, it will never output anything. Why? क्योंकि मैंने किसी चीज़ में ये यहाँ पे आपको कहीं आउटपुट का वर्ड नज़र आ रहा है, आउटपुट का नहीं, इट इज़ नॉट आउटपुटिंग समथिंग, इट इज़ जस्ट सेइंग कि रिटर्न. सो इसका मतलब है कि जब मैं ये सेल्सियस 79.4 को कर लूँ तो मेरे कंप्यूटर के अंदर 79.4 सेल्सियस में जाके वट एवर इट इज़, मे बी इट्स लाइक 19 पॉइंट समथिंग, अगर लेट से हम बोल देते हैं 19.5, तो वो सेल्सियस मेरे कंप्यूटर में एग्जिस्ट करता है, मेमोरी में आ गया, बट इट इज़ नॉट बीइंग आउटपुटेड बिकॉज मैंने कोई उसको आउटपुट का फंक्शन डाला ही नहीं है. सो वेन एवर आई नीड टू मेक यूज़ ऑफ अ फंक्शन, अब नाउ दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोसीजर एंड अ फंक्शन, क्योंकि प्रोसीजर में जब मैं कॉल कर लेता था तो वो डायरेक्टली स्क्रीन पे आ जाता था. सही है. अगेन वन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर टू नोट इज कि ये जो प्रोसीजर्स के अंदर हम कॉल वाली टर्मिनोलॉजी यूज़ करते थे ना, दिस इज ओनली फॉर प्रोसीजर. सो दिस कॉल कीवर्ड ओनली फॉर प्रोसीजर. सही, दिस इज ओनली फॉर प्रोसीजर्स. ऐसे ना हो कि आप लोग फंक्शन से पहले भी ये लिख रहे हो कॉल फंक्शन, दैट्स गोइंग टू बी रॉन्ग, इट्स ओनली फॉर प्रोसीजर्स. सो नाउ इफ आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, बिकॉज आई नो इट इज गोइंग टू बी रिटर्निंग द वैल्यू टू अ स्पेसिफिक फाइल और अ स्पेसिफिक वेरिएबल. सो आई माइट राइट इट एज लाइक मे बी देयर इज दिस वैल्यू वैल, एंड वैल के अंदर आपने कन्वर्ट कर देना है सेल्सियस, एंड उस सेल्सियस की वट एवर द वैल्यू इज मे बी 79.8. So now this 79.8 Fahrenheit is basically going to be going through all these conditions and वो return करेगा जो answer. This answer is basically going to be returned into this variable val. Now the benefit of making use of this function is कि अगर एक दफ़ा मैंने डिक्लेयर कर दिया, आगे मैं आपसे 10 टाइम्स में इनपुट ले रहा हूँ और वो 10 के 10 बार मैंने उस वैल्यू को चेंज करना है. तो इट्स नॉट लाइक कि मैं हर दफ़ा ये फंक्शन को लाइन्स को फिर से लिखूँगा. आई विल बी जस्ट लाइक ओके आउटपुट, एंड आउटपुट के बाद आई माइट बी लाइक एंटर a value in Fahrenheit. So I might be like this in Fahrenheit, and now the moment I write this, you will be like okay now I want to assign it into the value val, and उसके अंदर आप डाल दो क्या, Celsius. बल्कि माई बैड, हमने सबसे पहले इनपुट लेना है, राइट. सो एक चीज़ तो मैं भूल ही गया. सो आई विल बी लाइक ओके नाउ लेट्स टेक द वैल्यूज इनपुट टेम्प. अब वो कोई भी टेम्परेचर हो सकते हैं, temp can be anything. सही है. So now if I'm like okay again I made the mistake temp, so let's write it as like temperature. And now I'll be like okay val के अंदर आपने क्या असाइन करना है, तो हमने ऊपर फंक्शन बनाया था सेल्सियस एंड उसका पैरामीटर क्या मैं लूँगा, टेम्परेचर, राइट, टेम्परेचर. So the moment I execute this, तो whatever value of my temperature goes into this function, उसके जो भी होगा वो val. Now this is the same thing as in कि मैं अगर एक फंक्शन f of x equals to x square कर रहा हूँ, तो मैंने ऊपर ये इनपुट लिया, this is the input of x, right. So this Celsius temperature is basically indicating f of x, राइट. एंड ये जब इसके अंदर जो कोड मैंने लिखा है दैट इज़ बेसिकली x into x, एंड इसका जो आउटपुट आएगा दैट इज़ बेसिकली रिटर्न. नाउ क्योंकि मैथ्स में हम ये बोलते थे कि हमारे पास आंसर आ जाता है, तो वो काइंड ऑफ हम ये बोलते हैं कि हम वो पीछे लॉजिक नहीं, हमारे स्क्रीन को वो रिटर्न कर देता है. लेकिन अगर हम इस फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन को थोड़ा सा प्रोसीजर के कॉन्टेक्स्ट में ले, वो भी सही है. बट व्हाट इफ अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास यही वैल्यू जो यहाँ से आगे इट इज़ बीइंग असाइंड इनटू समथिंग, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज अ फंक्शन. सो अब यहाँ पे मैं आखिर में कर दूंगा आउटपुट वैल. जब भी मैंने कोई फंक्शन की वैल्यू को प्रिंट करनी है तो वो किसी वेरिएबल में जाके उसके थ्रू निकल के मेरे पास वो प्रिंट सही तरीके से
होगी. And this is what we call as a function and at the same time call as a procedure. Now you can kind of declare procedures and functions for multiple things. Like मैं ये बोलूँ कि आपको एक क्या कहते हैं what do we call it function and procedure declare करना है for main something, तो किस तरह होगा. But before that एक और important चीज़ है जो कि मैं थोड़ी सी भूल गया था, वो ये है कि this upper line of whether it's a procedure or a function, this upper line is known as a header. This line is known as a header. And what does a header constitute? So your header have three things. एक तो ये कि उसका name of procedure and function. Secondly हमारे पास exist करता है any parameters जो उसके थ्रू कर सकें. Now it's not necessary कि एक ही पैरामीटर हो. अगर लेट्स से मैं ये बोलूँ आगे मैं क्वेश्चन कराता हूँ 2 पैरामीटर्स, तो उसका क्या होगा. एंड लेट्स से उसके जो डेटा टाइप ऑफ रिटर्न होगी, डेटा टाइप ऑफ रिटर्न. Now the third one is only exclusive to a function, right? क्योंकि आपके procedure never returns anything, so this is only for a function. But now let's do a question. I'm like maybe, okay bro, I want you to create a program जो कि एक function, perhaps a function जो कि ये कर रहा हो कि it needs to do one thing. Let's say हम ये बोल देते हैं कि आपने एक function बनाना है जिसके अंदर a function, सही है, which will be taking variables x and y, सही है. एंड लेट्स से आपने उसके बाद करना ये कि यू नीड टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट. एंड नाउ आई वांट यू टू डू इज कि इसके बाद आप एक प्रोसीजर बनाओ which basically takes a value z which is the product of these two numbers, सही है, and that is basically z, सही है. एंड आपने इस प्रोसीजर z को वो करके आपने बोलना है कि if it is greater than 100 देन आपने आउटपुट करना है वाओ. एल्स इफ इट्स लेस तो आपने आउटपुट करना है ओ नो. सही. सो नाउ वी नीड टू मेक दिस कोड. नाउ इट मे सीम लाइक प्रीटी सिंपल, लेकिन लेट्स एक्सप्लोर कि ये करेंगे क्या, क्योंकि हम इन दोनों को कनेक्ट सा बना रहे हैं. सो व्हाई नॉट हम इस तरह कर लें. हमने सबसे पहले बनाना है फंक्शन विच इज कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट. सो आई विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द कीवर्ड फंक्शन एंड इसके बाद मैं डालूंगा उसका नाम विच इज़ वट प्रोडक्ट. सो फंक्शन प्रोडक्ट. नाउ आई नो कि मैं प्रोडक्ट के अंदर 2 वेरिएबल्स पैरामीटर लूँगा, एक्स एंड वाई. बोथ ऑफ देम आर वट, दीज आर माई पैरामीटर्स. सो अगर मैंने इन दोनों को पैरामीटर्स लेना है तो मैं किस तरह करूँगा. सबसे पहले मैं ब्रैकेट लगा के एक्स का डिफाइन कर दूँगा, एक्स विच विल बी एन इंटीजर, राइट. एंड नाउ आफ्टर दैट आई विल बी पुटिंग अ कॉमा एंड देन आई विल बी लाइक ओके वाई विच इज़ ऑल्सो एन इंटीजर. एंड दोनों को करने के बाद आई विल बी लाइक ओके प्रोडक्ट रिटर्न क्या करेगा. डेफिनेटली इट्स गोइंग टू रिटर्न एन इंटीजर 2. मैंने उसके साथ छेड़छाड़ करनी नहीं है जिसमें कोई मेरे पास डेसिमल पॉइंट. आई जस्ट नीड एन इंटीजर, सो आई विल बी लाइक इंटीजर रिटर्न कर दो. इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड अच्छे से करें, सो यू अंडरस्टैंड वेदर वी नीड द आउटपुट इन डेसिमल फॉर्म और इन इंटीजर फॉर्म. सो वंस वी हैव दिस फंक्शन बीइंग कोडेड लाइक दिस, नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं अंदर इनके प्रोडक्ट को कैलकुलेट करूँगा. मे बी इफ़ आई वॉन्ट आई कैन डायरेक्टली डू लाइक, एक तो मैं 2 तरीके हो सकते हैं अंदर कोड को. या तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं पहले डिक्लेयर करके वो कर दूँ जो कि थोड़ा लंबा होगा कि लाइक डिक्लेयर के अंदर आप डाल दो आंसर के डेटा टाइप में डिफाइन कर दो इंटीजर. एंड फिर मैं ये कर दूँ कि आंसर के अंदर में स्पेसिफाई कर दूँ कि यू नीड टू मल्टीप्लाई एक्स विद वाई एंड देन you need to return answer, right? So you have either this method and there is one other method too. What I can do is rather than including this variable, I can kind of skip it and maybe मैं काम कर लेता हूँ इसको. मैं अभी के लिए यहाँ पे ले आता हूँ साइड पे. What I can do is मैं इसी स्टेप को ऊपर ले आऊँ and rather than writing and bringing in the answer variable, मैं directly इस calculation को कर दूँ like return. And what do I have to return? You need to basically multiply x by y and इसका जो भी आंसर आया वो आपने डायरेक्टली रिटर्न कर देना है. सो यू हैव दीज 2 मेथड्स टू राइट इट. लाइक अगर आप इस तरह डायरेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट यूजुअली क्योंकि कॉम्प्लेक्स समटाइम्स द फंक्शंस आर प्रीटी कॉम्प्लेक्स, सो यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट लाइक दिस. बट इट्स इंपॉर्टेंट कि यू नो कि आप ये तरीका भी इख्तियार कर सकते हैं. ना इफ़ आई वॉन्ट टू डू लाइक दिस और मैंने वेरिएबल का यूजेज किया तो मैं इधर जाके रिटर्न कर दूँगा आंसर को. एंड नाउ इन द एंड व्हाट विल आई बी राइटिंग, आई विल बी लाइक ओके आपने कर दिया एंड फंक्शन. And now once I'm done with that, now I'll be basically writing code for the procedure before doing कि यार z होगा जो भी होगा. Let's say कि अब मैंने procedure का करना है. Procedure का मैं क्या करूँगा, just like that I will be writing the keyword procedure. Keywords are very important. So ये जो capital में लिख रहा हूँ ना ये ज़हन में रखना है. This. Now procedure name is what?
इसको हमने नाम देते हैं ग्रेट, सही, लेट्स गिव इट द नेम ग्रेट, ग्रेट। एंड उसका एक ही डेटा टाइप है विच इज़ बेसिकली z, जो कि मोस्ट प्रॉब्लम क्योंकि हमारा प्रीवियस फंक्शन वाई विल इट बी एन इंटीजर, दिस विल बी एन इंटीजर क्योंकि दिस इज बेस्ड अपॉन द वैल्यू गोइंग टू बी कमिंग फ्रॉम दिस प्रोडक्ट फंक्शन। एंड हमने बोल दिया कि प्रोडक्ट फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर। सो इसका मतलब है इस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू जाएगी वो इसी के डेटा टाइप होगी, राइट। कि लाइक अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ से आंसर मेरे पास, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ना कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इसका पैरामीटर बनेगा। सो इफ माई प्रोडक्ट इज ऑफ द डेटा टाइप इंटीजर, तो दिस मीन्स कि जो प्रोसीजर्स का जो इनपुट होगा दैट विल ऑल्सो बी एन इंटीजर। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर नहीं है तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं मुझसे बाद में। सो z का डेटा टाइप विल बी व्हाट, इट विल बी एन इंटीजर एंड सो इट वॉन्ट बी रिटर्निंग एनीथिंग। सो आई बी लाइक ओके ग्रेट, प्रोसीजर का नाम है z, उसमें होगा इंटीजर। एंड नाउ क्या हमने बेसिकली चेक करने एक दो चीज़ें, इफ इट्स ग्रेटर देन 100 और नॉट। सो आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ एन इफ स्टेटमेंट। इफ z इज ग्रेटर देन 100 देन आपने कर देना है बेसिकली आउटपुट, देन यू नीड टू आउटपुट क्या, ग्रेट, ग्रेट था या क्या था, वाव, वाव करना था, ओके वाव। So let's write it up as great, wow. And now let's say if it's not, क्योंकि again it's a what do you call string, तो हम इस तरीके से डबल कोटेशन मार्क में कर देंगे। else हमने क्या कर देना है, else you just need to output, oh no। अब यू माइट बी वंडरिंग वन थिंग कि यहाँ पे मैंने देन के साथ आउटपुट क्यों लिखा है, नॉट, वाई नॉट अप हेयर। सो इट्स नॉट दैट नेसेसरी, अगर आपके पास जगह बनती है तो इट्स एडवाइस कि आप आउटपुट को यहाँ पे लिखिए, लेकिन अगर आपके पास जगह नहीं बनती, जो कि मेरे पास कभी कभार नहीं होती थी, तो देन आउटपुट को आप एक लाइन में भी लिख लो, इंशाल्लाह उससे इतना मसला नहीं होगा। सो नाउ व्हेन आई डू दिस आई विल बी जस्ट लाइक ओके एंड प्रोसीजर कर दो। Now why am I not returning anything? Because if you see within the code, जब भी ये रन होगा it is always going to be giving some value onto the screen। ये किसी वैल्यू जब मैं आउटपुट करूँगा, दिस मीन्स कि इसके अंदर कोई फंक्शन को या किसी वेरिएबल को वैल्यू नहीं जाएगी, डायरेक्टली ऑन टू द स्क्रीन आ जाएगा। अब ये दो तो मैंने लिख दिया, अब इसको जब मैंने अगर वो आपको बोले, नाउ दिस इज बेसिकली द डिक्लेयरिंग पार्ट, राइट, वेयर यू रन द फंक्शन, हाउ डू यू डू इट। बट नाउ इफ दिस से कि यू ऑल्सो नीड टू एग्जीक्यूट द कोड, एग्जीक्यूट एंड कॉल द कोड, तो कॉल करने के लिए क्या तरीका होगा, इसका मतलब है कि आपके पास अगर वो बोल दे कॉल द कोड, और ऊपर मैं आपको बता दूं कि यू नीड टू कॉल इट विद द वेरिएबल्स के, लाइक अगर x की वैल्यू इज x मे बी 5, y मे बी 10, एंड आपने इसको करना है, तो ये कैसे चलेगा। तो इसको करने का तरीका ये होगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग अप हियर इज कि मैं सबसे पहले बनाऊंगा फंक्शन को, मैंने कॉल करना है, फंक्शन की जो वैल्यू मैं z में असाइन करूँगा। सो z के अंदर आई विल बी लाइक ओके द फंक्शन नेम इज़ व्हाट, प्रोडक्ट। And now I will be writing the what do we call it, उनके parameters, which is basically 5 and 10। x 5 है तो पहले 5 जाएगा, फिर 10 की वैल्यू। So this is 5 and 10, 5, 10। Now this 5 is basically the value of x and this 10 is basically the value of y। And now z के अंदर ये function execute हो जाएगा, it's going to be giving me the answer 50, right, x into y, 5 into 10 is 50, return answer। So this means कि जो इसका answer 50 होगा, that is going to come up here into the variable z। And now in the next line I am like okay now I want you to call, and call what, call the procedure with the name great, and उसका parameter आपने क्या करना है, it is going to be 50। लेकिन अब 50 मुझे थोड़ी पता है कि यार 50 क्या होगा, इसका आंसर 50 बनता है, क्या बनता है, तो मैं इसको जनरलाइज तरीके में ये लिख दूंगा कि जो वेरिएबल z है ना जिसके अंदर इस फंक्शन से वैल्यू आएगी वो लिखे। सो आई विल बी लाइक कॉल द ग्रेट फंक्शन प्रोसीजर विद द पैरामीटर z, एंड ये जैसे ही ये स्टेटमेंट रन होगी ना, ये ऊपर जाके चेक करेगा इज z ग्रेटर देन 100, नो इट्स नॉट। सो दिस मीन्स कि वो इस लाइन को स्किप करके नीचे एल्स आउटपुट ओ नो। सो ऑन माई स्क्रीन आई विल बी गेटिंग ओ नो, एंड दिस इज हाउ यू मेक यूज ऑफ अ प्रोसीजर एंड अ फंक्शन इन अ सिंगल सिनेरियो। सो आपको ये दोनों पता होने चाहिए। क्यों ज़रूरी है, ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अब आपको एग्ज़ाम के अंदर यूजुअली इन द 15 मार्क का क्वेश्चन, बिकॉज नाउ वी नीड टू डिस्कस द 15 मार्क क्वेश्चन थोड़ा सा, कि 15 मार्क का क्वेश्चन के लिए जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको अब आ जाने चाहिए। 1 DRA, oh I guess I did not discuss 2 DRAs, yeah perhaps I did, I guess I did, yeah I did, let me confirm, yeah we did discuss 2 DRAs। so now जब हमने ये सारा कुछ कर दिया, 15 मार्क के क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, वो आपको बोलेंगे कि भाई देयर इज़ दिस सिनेरियो जहाँ पे आपने ना 4 फंक्शंस बना देने हैं, 4 फंक्शंस, एंड फिर आखिर में आपने एक मेन्यू दे देना है, मेन्यू जिसमें आप यूज़र से इनपुट लोगे एंड उसने जो भी फंक्शन करना वो होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। नाउ दिस माइट सीम लाइक अ प्रीटी डिफिकल्ट, बट राइट एट दिस मोमेंट आई वुड वांट टू सॉल्व दिस वन easy 15 mark question which I feel like is pretty much very easy, a very easy 15 mark question that was basically from the May June
2025 paper number 22. I felt like that is pretty easy. So what I will be doing right now is कि मैं वो आप लोग को कराने की कोशिश करता हूँ. Let me see कि ये कहाँ पे अवेलेबल होगा. 0478 समर 25 का पेपर हो जाएगा. QP22. I hope it's available. Yeah, it is. I hope. Alright, let's do this. So now look at this, guys. हम क्या करने चाह रहे हैं? This will be how you are going to be solving a 15-marker question, right? So now if I want to solve this question, I know a few things. This is my 15-mark question. 15-marker. Very important. Now this one, I felt like it's very easy. इसमें कोई इतना मुश्किल होगा नहीं. लेकिन let's see, मैं भी आप लोग के साथ करूँ. मैंने पहले इसको कहीं solve नहीं किया. The question is saying a program is required to allow students to calculate what? You need to calculate the volume. You need to calculate the volume of a number of standard 3-dimensional shapes. It will use functions, the exact same thing जो हमने अभी पढ़ा है, to allow other shapes to be added in the future. Okay, not sure दो कि कैसे होगा, लेकिन let's say. Firstly, cuboid जिसका हमें formula given है. So this means we might be making use of something जिसके अंदर ये चीज़ use करे हो. Triangular prism, again we have a formula given, and just like that हमें sphere के भी वो given है. And then it also tells us कि ये जो pi है, this is the same pi जो हम mathematics में इस तरह लिखते हैं, which has the value of 3.142. And it also gives us the hint कि यार this is a constant, जिसका मतलब है कि rather than keeping it as a variable, हम शुरू में declare करते वक्त हम ये बोल देंगे constant pi equals to 3.142. इसने खुद ही हमें hint दे दिए कि it's a constant. Now what the examiner wants us to do is कि you need to write a program that meets the following requirements. सही, हमने ये करने. एक तो आपने करना है कि you need to output a menu to ask the user for an input to indicate the shape for which a volume needs to be calculated from the 3 shapes given, or if they want to stop a program. So मतलब ये है कि the examiner is asking us कि हमने एक menu बनाना है. That menu will give us an option कि आपने यार you want it for sphere, या you want it for maybe a triangular prism or for a cuboid. So like I might be like हमें एक option दो cuboid या prism, या आप एक fourth option मुझे दे दो end करने का, nothing, end. So हमने इन चारों में से कोई एक वो करना है. फिर हमने क्या करना है? You need to input the data. The program must validate the input. अब validate का क्या input मतलब ये है कि हमने चेक करना है कि जो वो input देगा वो सही हो. Like अगर आपको याद हो हमने validation checks पढ़े थे, validation checks. वैलिडेशन चेक के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी. हमने देखा था कि टाइप चेक हो, रेंज चेक हो, वगैरह वगैरह वगैरह. इसका मतलब है कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यू नीड टू इनपुट 1 to 4 के दरमियान फॉर एनी ऑफ दोज फंक्शंस, तो ऐसा ना कोई बंदा ए कर दे तो यूर कोड शुड गिव दैट पर्सन एन एरर, विच बेसिकली मीन्स कि वी नीड टू मेक यूज़ ऑफ अ टाइप चेक, राइट. सो हम इस तरह के छोटे छोटे आपके एग्जाम में जब भी आएगा 15 मार्क, यू नीड टू मेक सच नोट्स ऑन द साइड. पेंसिल लेकर जाना, ये नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं. देन वो आपको बोला कि यू नीड टू इनपुट द डेटा नीडेड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द चोजन शेप बेस्ड ऑन द गिवन फार्मूला. एंड देन इट सेज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यार आप एक फंक्शन बनाओ हर शेप के लिए अलग अलग, एंड आपने रिटर्न कर देना है वॉल्यूम यूजिंग द गिवन फार्मूला. एंड उसके जो आप फंक्शन बनाओगे उसके जो इनपुट डेटा आपको चाहिए ना वो आप पैरामीटर्स वो कर देना. एंड जो भी आपका फाइनल आउटपुट होगा यू नीड टू राउंड इट टू 2 डेसिमल प्लेस. जो अब आप बोल रहे हो कि राउंडिंग कैसे, तो रिमेंबर मैंने आपको राउंड का फंक्शन बढ़ाया, राउंड वाला. तो ये हम इन चीज़ों का भी मेक यूज़ करके हमने इसको एग्जीक्यूट करना है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर मूविंग ऑन मैं ये देखूंगा कि यार मेरे पास यहाँ पे कौन से वेरिएबल्स यूज़ हो रहे होंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू मूव ऑन कि हम अपने वेरिएबल्स को लोकेट करके स्पेसिफाई कर दें. सो आई माइट बी लाइक ओके वेरिएबल्स की कैटेगरी में यहाँ पे बना लूँ, एंड आई एम गोइंग टू बी राइटिंग द नेम ऑफ द वेरिएबल. सो यू सी आई हैव अ वेरिएबल विद द नेम वॉल्यूम. मुझे एक वॉल्यूम का बनाना होगा, मुझे एक बेस का चाहिए होगा, एक मुझे डेप्थ का चाहिए होगा, एक मुझे हाइट का चाहिए होगा. सही है. एक मुझे लेट्स से इसके बगैर क्या चाहिए होगा, मैंने देखा कि आई हैव द वैल्यू पाई, सो आई हैव द पाई विद अ कांस्टेंट. सही है, पाई कांस्टेंट है मेरे पास. एंड देन आई लेट्स से डोंट नो कि इसके बगैर मुझे क्या करना होगा. नाउ आई विल बी स्टार्टिंग माय कोड इन अ वे कि अब आप इसको पढ़ लो. द प्रोग्राम कंटिन्यूज अंटिल द यूजर इनपुट्स द स्टॉप ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू. कि मतलब जैसे ही आप स्टॉप ऑप्शन करेंगे आपका कंप्यूटर प्रोग्राम रोक देगा. सो अब आपने सूडो कोड या लिखनी या प्रोग्राम कोड. सो बिकॉज वी आर गोइंग टू बी यूजिंग सूडो कोड ओनली, तो हम इसको करेंगे. एंड इट ऑल्सो सेज कि ऐड कॉमेंट्स, विच मीन्स कि इफ यू डोंट ऐड कॉमेंट्स यू विल लूज मार्क्स. सो डू add comments, do add it for marks. इसके बाद इफ़ वी हैव द टाइम मैं आप लोग को इसके मार्किंग स्कीम के थोड़ी सी लॉजिक समझा दूंगा कि आपकी मार्किंग किस बेसिस पे होंगी. एंड देन इट ऑल्सो क्लियरली मेंशंस कि ऑल द वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स मस्ट बी डिक्लेयर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स दे से डोंट डिक्लेयर. So when they say don't declare, you are not required to declare. But if it states the variable कि यार आपने declare करना है, then it's compulsory.
देन इट्स सुपर कंपलसरी कि आप ज़रूर इसको डिक्लेयर करें. नाउ इट अगेन सेज कि यार जो भी हमारे आउटपुट इनपुट्स होंगे उनके पास सूटेबल मैसेजेस होने चाहिए. सूटेबल मैसेजेस का ये मतलब है कि अगर मैं बोलूँ आउटपुट वॉल्यूम, सो दिस विल बी रॉन्ग. यू शुड बी लाइक आउटपुट और आगे आप मैसेज लिखो योर वॉल्यूम इज एंड देन लाइक अ कॉमा एंड देन मे बी लाइक वॉल्यूम जो भी हमने उसको प्रिंट करना है. यू शुड डू इट लाइक दिस. नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद हाउ वी आर गोइंग टू बी बेसिकली राइटिंग द होल कोड. आई फील लाइक दिस क्वेश्चन यूजुअली गिव्स यू लाइक 45 minutes, राइट. ये पहला वाला बड़ा आसान है. नाउ वी हैव जस्ट लाइक 10 to 15 minutes. वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बट लेट्स स्टार्ट ऑफ कि यार ये करेंगे क्या. मे बी आप लोग के साथ ही इसको रन करता हूँ कि इसको अगर मैंने चलाना हो तो इसको मैं किस तरह करूँगा. सो उसके लिए हमने सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप सबसे पहले क्या करते हो, अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो. सो वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग ऑफ विद वेरिएबल्स. सो मैं ऊपर सबसे पहले लिखूंगा कि मैंने वेरिएबल्स बता दिए कौन से वैल वॉल्यूम वगैरह वगैरह. सो आई विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद दैट. मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इस लाइन के ऊपर डिक्लेयर. इसको मैं थोड़ा सा अभी थिक कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से नज़र आ रहा हो. डिक्लेयर एंड डिक्लेयर के बाद मैं क्या लिखूँगा, द वेरिएबल नेम मे बी लाइक वॉल या वॉल्यूम, वट एवर, इट्स अप टू यू गाइज, नॉट नेसेसरी. जो भी आप चाहते हो आप कर सकते हो. डिक्लेयर वॉल एंड यहाँ पे आप जाके लिख दो इंटीजर या फिर नाउ इट्स अप टू यू. इट कैन बी काइंड ऑफ डेसिमल नंबर 2, राइट. सो अगर डेसिमल की पॉसिबिलिटी भी है तो लेट्स डू इट, क्योंकि वी डोंट नो कि आपके पास में भी 5 into 7, बल्कि परहैप्स इफ वी टेक एवरीथिंग इज इन या मे बी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि डेप्थ 5.5 हो, तो देर इज़ अ पॉसिबल वैल्यू फॉर अ डेसिमल पॉइंट. सो हम इसको ये कर लेते कि हम रियल ले लेते. से अगर आप ऊपर देखो हमें कोई इनपुट के अंदर बताया गया कि इंटीजर होगा, नो हमें नहीं दिया. सो आपको इसके लिए जहन में रखना होगा कि यू नीड टू डिक्लेयर इट एज रियल. नाउ आई विल बी लाइक ओके डिक्लेयर एंड डिक्लेयर के बाद मैंने दूसरा जो करना है वो मैं कर दूंगा लेट्स से बेस डेप्थ हाइट. सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेस, उसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया रियल. फिर इसी तरीके से मैं फिर से कर दूंगा डिक्लेयर बेस, फिर मैंने डेप्थ कर दिया, डेप्थ को भी मैंने कर दिया रियल. फाइनली यहाँ पे मैं कर दूंगा डिक्लेयर एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेप्थ के बाद हाइट, उसको भी मैंने रियल कर दिया. सो आई हैव डन द 4 मेन डिक्लेरेशंस, सही है. एंड उसके बाद मैंने कर दिया, मैंने कांस्टेंट डिक्लेयर करना है. सो आई विल बी लाइक ओके कांस्टेंट एंड कांस्टेंट के बाद आई हैव गिवन इट द वेरिएबल पाई एंड उसकी वैल्यू आपने कर दी 3.142. आपको नहीं दी, याद नहीं होनी चाहिए. आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, तो ऑलवेज लुक एंड रीड द क्वेश्चन क्लियरफुली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ एट दिस मोमेंट आई माइट नॉट बी श्योर, अगर मैं यहाँ पे अगले लाइन यहाँ से लिखूँ तो क्या पता बाद में कोड के अंदर मुझे ज़रूरत पड़ जाए कि मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो. तो माई एडवाइस विल बी लीव टू ब्लैंक, इन दो को ब्लैंक छोड़ो, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं लगता कि बाद में क्या हो सकता है, सही है. सो नेवर टेक अ रिस्क. सो नाउ आई एम गोइंग टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, बट बिफोर दैट हम साथ पे साथ कमेंट्स भी डालते जाएंगे. सो लाइक यहाँ पे मैं कमेंट डाल दूँ डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, सही. यहाँ कांस्टेंट के सामने डाल दिया डिक्लेयरिंग पाई कांस्टेंट, सही है. आप इस तरीके से करो. ऑल्सो आपके जितने एग्ज़ाम होंगे उसके अंदर जो आपकी चेकिंग होती है ना वो इस पॉइंट तक होती है. सो डू इंश्योर कि आप इस लाइन को क्रॉस ना करो. ये ना हो कि आप थोड़ा सा इस पे हो तो यू माइट बी, लेकिन इफ़ इट्स आउट ऑफ दिस बाउंड्री इट वॉन्ट बी स्कैंड, सही है. सो नाउ वंस वी आर डन विद दिस, अब मैंने क्या करना है, हाउ विल आई बी प्रोसीडिंग. तो मुझे पता है कि 3 फंक्शंस है, तीन वो हैं शेप्स, तीनों के वॉल्यूम कैलकुलेट करना है अलग अलग तरीक़ों से. सो व्हाट आई विल बी डूइंग, इसके मैं 3 फंक्शंस बना लेता हूँ. एक फंक्शन होगा क्यूबॉइड एरिया को कैलकुलेट करने के लिए, एक होगा प्रिज्म के लिए, एक होगा मेरे स्फेयर कैलकुलेट करने के लिए. नाउ इसके लिए मैं करूँगा ये कि मैं इन तीनों के लिए अलग अलग 3 फंक्शंस डिक्लेयर कर दूँ. लेट्स गो विद सबसे पहले आई विल बी लाइक ओके लेट्स क्रिएट दिस फंक्शन एंड उसको नाम मैं दे देता हूँ व्हाट, क्यूबॉइड, क्योंकि मैंने क्यूबॉइड को सबसे पहले लेट से करना है क्यूबॉइड. नाउ दिस क्यूबॉइड फंक्शन इज बेसिकली गोइंग टू बी टेकिंग 3 पैरामीटर्स, 3 वैल्यूज़ वो इनपुट लेगा, ये 3. सो क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपके नीचे यहाँ पे डिक्लेयर की है उसी तरीके से आपने इसको यहाँ लिख देना है कि ऊपर मैंने बेस डेप्थ को की है. सो आई विल बी लाइक ओके आपने एक ले लेना है बेस, सही है. या उस बेस के आप क्या वो करोगे, उसके अंदर आप उसके डेटा टाइप स्पेसिफाई करो इंटीजर, फिर आप कर दिया कॉमा, फिर मैंने क्या करना है वॉल्यूम सॉरी डेप्थ, या ओके माई बैड आई मेड अ मिस्टेक अप हेयर, इट शुड बी रियल, मैंने ऊपर रियल डिफाइन किया रियल. फिर डेप्थ का मैंने कर दिया रियल,
फिर मैंने यहाँ पे कॉमा करके बता दिया कि आई विल बी टेकिंग हाइट, जिसका मैं यहाँ पे अब नीचे यहाँ से मैं लेट से कंटिन्यू कर लूँ रियल, सही है। एंड देन आई विल बी लाइक ओके, ये करके रिटर्न्स एंड रिटर्न्स के बाद आपने क्या करना है, उसके डेटा टाइप विच विल बी डेफिनेटली, क्योंकि रियल है तो वो डेसिमल आउटपुट वापस भी तो दे सकते हैं। आई विल बी लाइक ओके रिटर्न रियल। अब ये तो मेरा हेडर हो गया। व्हाट इज दिस लाइन? दिस इज नोन एज अ हेडर, जो मैंने आपको पहले भी बताया अभी ना। अभी यहाँ पे जाके हमारी मेन कोडिंग स्टार्ट होगी। अब आई विल बी लाइक ओके लेट्स स्टार्ट द कोडिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। आई नीड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम। सो अब वॉल्यूम कैलकुलेट करने का तरीका ये कि इट्स बेस इनटू डेप्थ इनटू हाइट। सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप डायरेक्टली या तो इधर वो जिस तरह मैंने आपको बताया आंसर वेरिएबल करके वो करो, या अगर आपने जगह बचानी है तो यू विल बी लाइक ओके रिटर्न, एंड रिटर्न करने के बाद आप एक ब्रैकेट बनाओगे, उसके अंदर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। सो लाइक यू विल बी लाइक बेस मल्टीप्लाई बाय डेप्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, सही है। एंड आप ये बंद करोगे एंड दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी रिटर्न बैक टू वट एवर द फंक्शन इज। एंड एंड में मैं क्या कर दूँगा, आई विल बी लाइक ओके एंड फंक्शन। ना ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया। बट अब आप सोचोगे सर इसके अंदर तो मैंने कोई कमेंट्स ही नहीं डाला वगैरह वगैरह वगैरह। तो कमेंट डालने के लिए ऊपर अगर लेट से मुझे लग गया कि यार मुझे कोई ब्लैंक स्पेस की ज़रूरत ही नहीं है, तो अब मैं यहाँ पे जाके अपना कमेंट डाल दूँगा, डिक्लेयरिंग सेपरेट फंक्शंस फॉर ईच शेप। अब व्हाट इज़ अ कमेंट? अ कमेंट बेसिकली एक्सप्लेन्स योर कोड कि आप करना क्या चाह रहे हो। सो लाइक यहाँ पे मैं अगर ये बोलना चाहूँ रिटर्न, तो मैं ये कमेंट डाल के बोल दूँगा रिटर्न। आपके पास जहाँ जगह बन रही हो ना एट द एंड, आप देखो आपके पास टाइम बन रहा है, आप बस डालो जहाँ जहाँ डाल सकते हो एक्सप्लेन करने के लिए। ज़्यादा ये भी ना हो कि सारा फ्लडेड हो, बट एटलीस्ट माई पर्सनल सजेशन विल बी कि हर मेजर उसके बाद आप लूप डालो। वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ अ लूप विच विल बी डूइंग दिस फंक्शन, ये इसलिए हर स्टेप को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। अब क्योंकि मैंने बता दिया कि मैं सेपरेट फंक्शंस करूँ, इसके नीचे मैं तीनों फंक्शंस को अब वो कर लेता हूँ। लेट्स से अब मैं दूसरा फंक्शन में एक बना लेता हूँ फंक्शन। अब इस दफ़ा मैं किसका बना रहा हूँ, आई एम डूइंग इट मे बी फॉर प्रिज्म, फंक्शन प्रिज्म। एंड कैन आई सेलेक्ट इट? नो आई कैन नॉट सेलेक्ट इट। सो अब वही ऊपर वाली लाइन को मैंने फिर से सारा लिखना है। हो गया, आई हैव अ बेस विच इज़ बेसिकली रियल, सही है। देन आई हैव अ डेप्थ वाला पैरामीटर विच इज़ बेसिकली अगेन रियल, एंड देन आई हैव अ हाइट वाला पैरामीटर विच इज़ अगेन रियल, एंड देन आई हैव to return it, which will be returns. And now you need to basically write the returns data type, which will be again real. And now let's do it this is दफ़ा जो हम करें, let's do it using that using the method of basically क्या कहते हैं, I forgot the name, maybe variable वाला। like if I want to declare a variable within this, तो मैं किस तरह करूँगा? I will be like okay you need to declare a variable known as answer. दिस शुड हैव बीन समथिंग जो मैं कल करा था, लेकिन चलो अभी करा दिया तो कोई नहीं। अब डिक्लेयर आंसर के अंदर डेफिनेटली रियल होगा। एंड नाउ आई विल बी लाइक ओके, अब ये अंदर मैं क्यों डिक्लेयर करूँ, बाहर क्यों नहीं कर रहा? दिस इज समथिंग जो हम कल पढ़ लेते हैं, दिस शुड हैव बीन समथिंग जो अभी पढ़ना चाहिए, लेकिन चलो लेट्स डू इट दैट टुमारो इंशाल्लाह। सो अब डिक्लेयर आंसर के अंदर ये कर दिया ना, आई विल बी लाइक ओके आंसर के अंदर आप डेटा टाइप वैल्यू स्पेसिफाई कर दो, बेस into depth into height। लेकिन you know कि it's a prism, so prism को आपने 1/2 से भी तो मल्टीप्लाई करना है। so I'll be like okay आप ये कर लो base into height into आप कर दो e को तो मैं छोड़ ही दिया, height into let's say depth, and इस सब को आपने कर देना एक ब्रैकेट्स के अंदर। remember brackets are very important, and then आपने मल्टीप्लाई कर देना multiply by 0.5, and now you need to return what? You need to return answer, and so it's going to be returning the answer, and आप नीचे जाके क्या लोगे end function। you know what, if you only do this part till properly, like ये end function एक साथ है, सही है, it's not अलग अलग इस तरह। if you do all these three functions and your declaration, you're almost to the point where you might be scoring around 10 marks, you know, इतना ईजी। नाउ दिस इज़ कंपैरेटिवली अ वेरी इजी क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपको कराया है। मे बी द 15 मार्कर जो आपके एग्जाम में आए वो इससे डिफिकल्ट हो। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट मेकिंग यूज ऑफ अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नोन एज एरेस। Arrays basically make your 2D arrays, 1D array basically is the thing that makes your question really difficult. But now this is what we call as an easy 15 marker, and इसको ना इसके अंदर आराम से बच्चे फुल मार्क्स ले सकेंगे। अभी आप इसको देख रहे होंगे, आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की, बट इट मे सीम लाइक इट्स वेरी सिंपल,
नाउ आफ्टर दैट ये अगर आपको सिंपल इसकी समझ आने लगे इंशाल्लाह, तो आगे हम ये कल की क्लास में लेट्स डू अनदर 15 मार्कर टुमारो अगेन, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। कल हम 2D एरेज वाला कोई कर लेंगे इंशाल्लाह, so, ताकि आपके उसके साथ भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये 2 क्लासेस जब होंगी आप बोलेंगे ये 15 मार्कर तो कोई मुश्किल है नहीं। इसके बगैर जो पिछले वाले जितने क्वेश्चन हैं ना ये प्रोग्रामिंग के, ये अब ये इस तरह की आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे कि यार ये क्या है, एनी प्रोग्राम स्टेटमेंट कौन से में एरर्स है, आप अच्छे से कर पाओगे। इट्स जस्ट लाइक आप हमारे इंशाल्लाह कोर्स हो जाए, फिर हम इसको शुरू से थोड़े पेपर्स भी हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। So now let's start off with again third function. The name of the function is what? It's fair. And I see that again I'm going to be taking the same parameters. So I have like a base which has the data type of real. I have depth which has the data type of again real. Then I see that I have the data type variable parameter as a height which has the data type of real. And altogether this is basically going to be returns real. See, now this is pretty much very clear कि क्या हो रहा है. Again, considering it's a keyword, it's better to write it in capital. So let's write it in capital real. Now अब इसको मैं चलाऊंगा क्या? I have to apply the same formula जिस तरीके से ऊपर 4/3 into pi into radius into radius into radius. 4/3 क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो होता है 4/3 pi r cube. बट क्योंकि क्यूब को हम इस तरह करने, so it's better to do it like this, r into r into r. So अब इसके अंदर मुझे एक बात बताओ, एक गलती मैंने कर दी है जो कि मुझे अभी एनालाइज हुई है. देर इज़ नो नीड टू हैव बेस, देर इज़ नो नीड टू हैव डेप्थ, देर इज़ नो नीड टू हैव हाइट. सो वी जस्ट मेड यूज़ ऑफ रैंडम, जो कि अब जैसे मुझसे गलती हुई है एग्जाम में आपसे भी हो सकती है. एंड दैट्स द रीज़न वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू अगेन एंड अगेन गो बैक एंड सी कि आप क्या करना चाह रहे हो. क्योंकि अब यहाँ पे तो मैंने इरेज कर दिया, शायद बाद में आपको इरेज करने का मौका ना मिले. सो नाउ दिस फेयर इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जो मैं ऊपर फंक्शन बता रहा हूँ कि मैंने कौन से फंक्शंस करने, इसी के साथ मैं नीचे लिख दूँ नाउ दिस वाज समथिंग आई डिड नॉट डू एंड आई एक्नॉलेज दैट. लेकिन यहाँ पे आप बताओ कि उसके पैरामीटर्स क्या है. यहाँ पे एच बी डी है, यहाँ पे भी वही है, एंड यहाँ के हमारे सिर्फ आर है. सो आई हैव टू ओनली टेक द पैरामीटर एज अ रेडियस. सो आई विल बी लाइक ओके रेडियस, एंड रेडियस कैन बी एनीथिंग, इट माइट बी अ रियल वैल्यू. सही है, रियल. एंड सो इट विल ऑल्सो गोइंग, इट इज गोइंग टू बी रिटर्निंग अ रियल टू रिटर्न्स रियल. एंड नाउ इफ आई राइट द कोड अप हियर आई विल बी लाइक ओके आप रिटर्न कर लो बिकॉज वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्पेस. आप रिटर्न कर दो क्या 4/3 pi r क्यूब. सो आप डायरेक्टली कर दो रिटर्न, ओके इट्स आपने क्या कर देना है, आप कर दो 4/3 इंटू रेडियस इंटू रेडियस इंटू रेडियस. आई पर्सनली डिड नॉट लाइक दिस डायरेक्ट मेथड क्योंकि इसके अंदर एरर्स हो सकती है. अगर मैं होता मैं ऊपर वाले तरीके से करता, एक के अंदर वो असाइन करके रेडियस रेडियस उसको रिटर्न कर देना. लेकिन क्योंकि अगर जगह लेट से आपके पास कम है तो आप इस तरीके से भी कर लो, इट्स गोइंग टू बी वर्किंग परफेक्टली फाइन. एंड सो लाइक ओके एंड फंक्शन. If I look up into the characteristics, you can see कि हमने ऑलमोस्ट आधा कोड कर लिया. हमने ये कर दिया कि ओके हमने फंक्शंस बना लिए, हमने इनपुट यूजर से लेना है, ओके ये रहता है, एंड हमने एक मेन्यू बनाना है. बट यू सी कि हमारा मेजर पोर्शन हो गया, दिस इज़ द मोस्ट मेजर पार्ट, एंड वो सारा वॉल्यूम अच्छे से कैलकुलेट कर रहे हैं. नाउ यहाँ पे लेट्स से अब मैं यहाँ तक आ गया, लेट्स ऐड अ फ्यू कॉमेंट्स. लाइक मैंने कर लिया यहाँ तक. नाउ लेट्स ऐड कॉमेंट. यहाँ आंसर को मैंने बता दिया रिटर्न्स द वॉल्यूम. सही है, एक्सप्लेन करूँ कोड को. या फिर यहाँ पे मैंने कर दिया, अब यहाँ पे मैं एक डाल देता हूँ टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र. सही, अब हमने यूज़र से इनपुट लेना है, वो हमें बताएगा कि क्या क्या वैल्यूज़ होंगी वगैरह 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 वगैरह. सो आई विल बी लाइक ओके टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र. एंड अब वो यूज़र से इनपुट हम किस तरीके से लेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स चीज़ आ गई कि अगर हमने पहले 2 फंक्शंस को डील कर रहे हैं तो उसके अंदर तो हमने बेस भी लेनी है, डेप्थ भी लेनी है, हाइट भी लेनी है. लेकिन अगर हम सिर्फ स्फेयर को ले रहे हैं तो उसमें हमने सिर्फ रेडियस को करना है. अभी हम कैसे करेंगे थोड़ा सोचो, क्योंकि मैं भी आप लोग के साथ ही लिख रहा हूँ पहली दफ़ा. सो लेट मी थिंक कि लाइक अगर मैंने यूज़र से इनपुट लेना है, वो मुझे अपना ऑप्शन बताएगा कि उसने कौन से ऑप्शन को चूज़ करना है. क्योंकि मुझे बताएगा ना कि मैंने स्फेयर को लेना है, मैंने किस ऑप्शन को लेना है. वो जब अपने ऑप्शन को स्पेसिफाई कर दे कि लेट से मैंने स्फेयर के साथ जाना है, तो फिर मैं उसको बोलूँगा कि ओके आपने सिर्फ ये बता देना है, इनपुट ये. सो दिस मीन्स वी आर बेसिकली मेकिंग यूज़ ऑफ एन इफ़ स्टेटमेंट, राइट. सो हम इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करें. अब इफ़ स्टेटमेंट को किस तरह मैं करूँगा, आई विल बी लाइक सबसे पहले आप बोल दो आउटपुट, एंड यहाँ पे मैं लिख दूँ एंटर द शेप नंबर, एंड आगे मैं बता दूँ
कि आपने कौन सा 1 फॉर क्यूबॉइड, 2 फॉर प्रिज्म, 3 फॉर स्फेयर। सही है। सबसे पहले नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल एज अ मीनिंगफुल मैसेज। नाउ ये देख रहे हो, मैं सिर्फ आउटपुट नहीं कर रहा, आई एम टेकिंग सम मीनिंगफुल मैसेज। मीनिंगफुल मैसेज मतलब यूज़र को कोई पता तो लग रहा है बंदा मांग क्या रहा है, ये थोड़ी है कि आप डायरेक्टली सिर्फ मुझे बोल रहे हो कि आप क्या मांगना चाह रहे हो, लाइक दैट। सही है। एंड नाउ आफ्टर दैट आई विल बी लाइक ओके नाउ यू टेक एन इनपुट। इनपुट एंड क्या चीज़ आप इनपुट करवाना चाह रहे हैं, हम ले रहे हैं इनपुट मे बी वट एवर इनपुट चॉइस। Now this choice is again a variable. Now this is the thing I was talking about at the start. Now you tell me one thing, when I say कि मैं ये choice को यहाँ पे ला रहा हूँ, तो choice is a variable जिसको मैंने declare ही नहीं किया। तो अगर मैं यहाँ पे होता तो I will be like oh यार अब मैं क्या करूँ, but luckily मैंने तो ऊपर जगह छोड़ी थी, right? So I will be like okay declare and यहाँ पे जाके मैं लिख दूँगा choice, and because I know कि choice will be an integer क्योंकि 1 2 3 होगा, तो I will be like okay integer. एंड दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू बी डूइंग इट इन टर्म्स ऑफ कोई डिफिकल्ट टाइम्स हो या इस तरीके से। तो हमने चॉइस को इनपुट कर दिया। अब मैंने ये चेक करना है कि अगर ये मेरा लेट से, इसने क्वेश्चन के अंदर एक और चीज़ भी बताई थी, बड़े मज़े की बात। इसने बोला था कि आपने हर ऑप्शन को ना वैलिडेट भी करना है, मस्ट वैलिडेट द इनपुट। अब वैलिडेट द इनपुट का ये मतलब है कि अगर मैं इनपुट ले रहा हूँ तो कोई ए ना डाल दे। तो अब ये मैं कैसे चेक करूँगा, उसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे रिपीट लूप लगाना होगा। पता है मैंने ये गलत कर दिया, मुझे रिपीट लूप लगाना होगा बिकॉज आई नीड टू सी कि यार ये सही तरीके से होगा या नहीं। अब रिपीट में मैं कौन सा लूप लगाऊंगा, आई विल बी बेसिकली मेकिंग यूज़ ऑफ दिस स्पेसिफिक फंक्शन। ऊपर जाओ मैं आप लोग को दिखाऊँ, वी स्टडी दिस इन वैलिडेशन वाला पार्ट कि इफ़ यू रिमेंबर, नहीं यहाँ पे हमने कहीं पढ़ा था स्ट्रिंग हैंडलिंग से पहले, चैप्टर 8 से आई गेस, नहीं चैप्टर 7 था, चैप्टर 7 लॉजिकल ऑपरेटर्स, न्यूप 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 बाउंड्री, आई गेस इससे भी पहले पढ़ा था, या ये चीज़ हमने पढ़ी थी चेक्स। तो ये जो ये वाला चेक है ना, टाइप चेक, हमने ये देखना है कि यार उसने हमने कोई इनपुट लिया, हमने चेक करना है कि अगर वो नंबर 1 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब है कि ये होल नंबर है। लेकिन अगर वो नहीं होता, दिस फंक्शन दिस साइन बेसिकली इंडिकेट्स नॉट इक्वल। लेकिन अगर वो नहीं इक्वल होता तो दिस मीन्स आपने फिर से एंड करना है जब तक आपका वो उसके बराबर ना हो जाए। सो यू आर गोइंग टू बी मेकिंग यूज़ ऑफ द सेम थिंग अप हियर। आई विल बी लाइक ओके मेक यूज़ ऑफ अ रिपीट लूप। अगर हम यहाँ पे कर दे रिपीट एंड अंदर मैंने कर देना है इनपुट चॉइस। अब बंदा अपने चॉइस को यहाँ पे कर देगा। अब मैं ये बोल दूँ if choice is not equal to what, divide one, when you divide choice with 1, this function choice by 1 basically means कि आप इसी नंबर को 1 से डिवाइड करें। इट्स जस्ट लाइक अगर मैं 10 करूँ एंड मैं 10 डिवाइडेड बाय 1 10 ही होता है ना। सो आई एम जस्ट सेइंग कि अगर 10 डिवाइडेड बाय वो, अगर मैं ये बोल दूँ कि यहाँ पे इनपुट में a कर दूँ, a डिवाइडेड बाय 1 इज गोइंग टू गिव मी एन एरर विच मीन्स कि a इज़ नॉट इक्वल टू एरर, राइट। तो अगर ये इक्वल टू नहीं है तो इसका मतलब मैं इसको फिर से इसको बोलूँगा आपने कोई और चीज़ इनपुट किया वगैरह। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। नहीं समझ आती तो यू कैन रीच आउट और यू कैन ऑल्सो री वॉच द चेक्स वाली वीडियो, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया। अब इफ़ चॉइस इज़ नॉट इक्वल टू दिस तो आपने कर देना आउटपुट इनकरेक्ट चॉइस एंटर्ड प्लीज एंटर द राइट वन। एंड जब इसको आप वो कर लेते हो तो आपने ये अगेन डबल कोटेशन मार्क्स आर इंपॉर्टेंट, हमने ये कर दिया। एंड नाउ आई विल बी लाइक आपने ये चलाना है। अब इफ़ है तो यहाँ पे डेफिनेटली इसी लाइन के मुताबिक मैं यहाँ पे एंड इफ डाल दूंगा। एंड नाउ आई विल बी लाइक ओके यू नीड टू रिपीट दिस अंटिल माई चॉइस वाला जो वेरिएबल है दिस इज बेसिकली इक्वल टू व्हेन आई डिवाइड दैट स्पेसिफिक नंबर बाय 1। सो इट इज़ द सेम थिंग कि जब वो डिवाइड होगा तो एनी थिंग दैट दिस इज अगेन अ फंक्शन, यू सी आई एम काइंड ऑफ कंपेयरिंग इट। इससे जो रिटर्न हो रहा है उसको मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। इट्स नॉट आउटपुटिंग समथिंग बट इट इज गेटिंग टू दिस पॉइंट वेयर आई कैन कंपेयर इट। नाउ दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन क्यों है, क्योंकि कुछ आउटपुट नहीं हो रहा, बट यू सी कि इट इज़ रिटर्निंग द वैल्यू टू द मेमरी। मैंने आपको बताया था ना कि वो मेमरी को वैल्यू असाइन कर देगा। अब सिस्टम के पास ये आ गया लेकिन कोई आउटपुट नहीं हो रहा, लेकिन हम ये कर सकते हैं आउटपुट डिफ चॉइस 1, तो उसके थ्रू ये फिर भी चल जाएगा। अगर मैं ये बोलूँ ना आउटपुट डिफ चॉइस 1 तो 10 आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। लेकिन अब ये इसका ये एक आपको पता होना चाहिए कि ये हमने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। अब रिपीट अनटिल के अंदर हमने ये लॉजिक भी अप्लाई कर दी। दिस मीन्स कि इस लाइन जब एग्जीक्यूट होगा तो जो भी मेरे पास चॉइस होगा इट विल बी एन इंटीजर, कंफर्म बात है। सो यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ टू वैलिडेट द इनपुट।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये बात लिखे टू वैलिडेट द इनपुट, राइट ना। अगर मैं नीचे जाऊँ, नीचे थोड़ा सा नीचे जाऊँ, अब मेरे पास वैल्यू जो आएगी चॉइस की, दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी एन इंटीजर। नाउ एट दिस मोमेंट, या अगर मैंने ये चूज़ करना है कि लेट्स से इफ़ ऑप्शन इज़ लेट्स से 1, तो आपने कर देना है स्फेयर को वो, इफ़ ऑप्शन इज़ 2 तो कुछ और वगैरह 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 एंड सो ऑन। बट अब ये कैसे होगा? It's either you make use of these if statements, which is going to be very difficult because you need to make use of nested ifs, and वो काफ़ी complex हो जाएगा. So what I can do is कि हमने दो तरीके पढ़े थे when we were making use of selection statements. If you remember, one was this if statement and the other one was of case of statements. So अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? selection of option, सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन, एंड वो आपके ऑप्शन के मुताबिक अब हमने वो करना है कि आप कौन से ऑप्शन को चूज़ करेंगे. लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ मैं फिर भूल गया था, पता है क्या? कि ये जब मैंने वैलिडेट किया, आई नो कि मेरे पास वैल्यू तो इंटीजर आ गए, बट ना हैव टू सी कि यार डेटा में मैं क्या इनपुट लूँगा. मैंने ना बेस इनपुट लिया है, ना डेप्थ लिया है, ना हाइट लिया है. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप बार बार क्वेश्चन के पास आते जाओ कि यू नो कि हाँ मैंने करना क्या है, क्योंकि अब मिस हो जाता है तो फिर ये मसला बन जाता है. सो ना व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं सबसे पहले यहाँ पे लूँगा कि इनपुट लूँगा यूजर से. ना आई विल बी लाइक इफ़, अब यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट्स को यूज़ कर लेते से इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 1, देन अब चॉइस इक्वल्स टू 1 मैंने ऊपर बता दिया यहाँ पे कि 1 इज गोइंग टू बी फॉर क्यूबॉइड, जो कि मुझे पता है क्यूबॉइड के अंदर आई हैव टू टेक बेस, डेप्थ एंड हाइट, राइट. सो आई विल बी लाइक देन आप आउटपुट करो सबसे पहले आउटपुट, एंड आउटपुट के अंदर आप मैसेज कर दो कि एंटर डेप्थ. नाउ आई विल बी लाइक ओके, नाउ लेट्स इनपुट डेप्थ. देन आई एम बी ओके, नाउ आउटपुट एंटर डेप्थ हाइट, एंड तीसरी क्या थी? आई डोंट नो, लेट मी चेक. द थर्ड वन वाज बेस. ओके, so enter height, and then you'll be like okay, input height, and now finally I'll be like okay, output आप फिर करो. And now why am I again and again writing the word output? Because these are what I call as the meaningful messages. So I will like enter base, and so you need to like give the value of input base. अब ये तब होगा अगर आपकी चॉइस 1 हो. अगर 1 ना हुई तो फिर, तो अगर ना हुई तो आई विल बी लाइक एल्स इफ चॉइस इक्वल्स टू 2, देन इसी सारे कोड को ऊपर वाले को कॉपी कर देना है, जो कि पता नहीं अब यहाँ पे आई डोंट थिंक सो आई कैन सेलेक्ट इट, बट दिस सेम थिंग हैज़ टू बी अगेन रिटन. सो आउटपुट एंटर डेप्थ डबल कोटेशन, and then you're like okay, input, and you take the input as depth, and then you're again like okay, output enter height, and then you again take input of height, and then finally you're like again same to same, output enter base. अगेन ये मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सेम टू सेम ऊपर वाली बात है. सो आई वॉन्ट बी काइंड ऑफ डूइंग इट अगेन. सो यहाँ पे मैं, अगर आप बाद में देख रहे हो इसी स्टाइल चीज़ को, सो आई एम काइंड ऑफ रिपीटिंग द अबव स्टेटमेंट्स. सही. एंड अब यहाँ पे मैं ये देख लूँ कि मेरे पास अगर 1 हुआ 2 हुआ तो फिर तो ये, लेकिन अगर लेट से ऑप्शन 3 हो तो उसके लिए, तो इसका ये मतलब है कि मैं यहाँ पे कर दूँगा एल्स, फिर एल्स इफ लगा दूँगा. एल्स इफ ऑप्शन, अच्छा एक चीज़ मैं और भूल गया जिसके शायद मुझसे मार्क्स काट दिए जाए. व्हाट इफ ऑप्शन 1 2 3 तो मैंने कर दिया, लेकिन बंदा 4 इनपुट कर दे फिर. सो अगर 4 इनपुट करने वाली बात है, दिस इज़ वेयर योर 15 मार्क गेट्स अ बिट कॉम्प्लेक्स. लेकिन उसका मसला इतना नहीं होगा, क्योंकि व्हाट वी कैन डू इज़ कि मैं इनपुट चॉइस के अंदर यहाँ पे ये भी डाल अनटिल चॉइस इज डिव चॉइस नंबर 3 एंड मैं ये भी लिख दूँ चॉइस इज लेस देन 4, मतलब 4 से वैल्यू कम हो, और एंड एट द सेम टाइम एंड चॉइस इज ग्रेटर देन 0.
तो ये मैंने ये स्टेटमेंट भी डाल दी कि वो 4 से छोटा होना चाहिए एंड ग्रेटर देन 0, ये मैंने लेंथ चेक भी डाल दिया। एंड इसको मैं ऊपर डाल के यहाँ पे मैं एक वो भी इनकरेक्ट चॉइस और ऊपर मैं ये लिख सकता हूँ कि वैल्यू आपकी ये है, एंड अगर नहीं है तो आपकी मतलब ये भी हमने डाल दिया। सो एग्जामिनर इसको वो कर देगा कि ओके द पर्सन इज बेसिकली। अब इस कोड का क्या मतलब है, इसका मतलब आपने रिपीट तब तक लिखना है जब तक या वो इंटीजर ना हो, एंड सेकेंडली ये कि मुझे ये पता लगे कि जो वैल्यू हो वो 4 से कम हो एंड 0 से बड़ी हो। तो इसका ये मतलब है कि अगर बंदा गलती से ये इनपुट कर दे, लेट से 5, तो 5 तो इनपुट सही होगा, लेकिन यहाँ पे जब तक ये मैंने ये लाइन ना लिखी होती तो 5 तो नीचे भी आ रहा होता। बट वट इफ़ आई वांट कि 5 को वो ना कंसिडरेशन मिले, तो जब ना ले तो उस सूरत में हम इस लाइन को लिख देंगे कि अगर इस तरह का कुछ आया तो आपने वैल्यू फिर से लेनी है। अब एल्स इफ के बाद अगर कंसिडरिंग मैंने अपनी लिमिट को यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया 4 और 0 के दरमियान, तो अब मैं डायरेक्टली, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे वैल्यूज़ 1 2 3 आ सकती है, इसके बगैर हो ही नहीं सकती क्योंकि मैंने लिमिट ही इस तरह सेट कर दी। तो आई विल बी लाइक ओके आप सिर्फ एल्स कर दो, विच मीन्स का मेरे पास ऑप्शन नंबर 3 है, जहाँ पे मैं कर दूंगा आउटपुट enter radius, and now you'll be like okay input radius. Now this whole thing can be done maybe in some other way too, लेकिन I feel like कि मुझे जितना अभी आ रहा है तो उसके मुताबिक ये इसी तरीके से होगा। You might be thinking सर ये तो जगह ख़त्म हो गई, but remember कि आपकी जगह ख़त्म हो गई तो you can always ask for an extra sheet जिस तरह मैंने मांगी थी। So अब इसी को कंटिन्यू करते हैं किस तरीके से, आउटपुट एंटर रेडियस, इनपुट कर दिया आपने रेडियस, एंड नाउ एट दिस मोमेंट अगर मैं इसको एंड इफ कर दूँ तो आई हैव ऑल द वैल्यूज़ इन माई कंप्यूटर बट यू डोंट हैव स्पेस। अब आप एग्जाम में इसको कैसे टैकल आउट करोगे। मैं जब अपनी एग्जाम में था मैंने एक्स्ट्रा शीट मांगी थी, तो आपने यहाँ पे ये कर देना है कंटिन्यूड ऑन एक्स्ट्रा, इस तरीके से मैंने लिख दिया था एक्स्ट्रा शीट, एंड वो आपकी एग्जामिनर को पता लग जाता है कि आपने एक्स्ट्रा शीट के ऊपर कर दिया। यहाँ पे मैं थोड़े से अगर इसमें कमेंट्स डालना चाहूँ तो मैं कमेंट डाल दूँगा। यहाँ पे मैं लिख दूँगा choosing values for the specific shape से, इस तरीके से आप थोड़ी से वो डालें तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगी कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। अब अगर लेट से इसी को मैं थोड़ा सा इसके मैं पिक्चर्स आपके लिए ले लेता हूँ कि आप लोग को फिर बाद में मैं नोट्स के साथ भी इसको अटैच कर लूँ ताकि यू कैन अंडरस्टैंड इट द राइट वे, कि अगर बाद में किसी ने नोट्स देखने हो तो उसको भी पता लग रहा हो कि हमने किया क्या है। सो 1 and I'm going to take it up of this 2, and so I will erase this specific place, okay, 2, and finally this, and so now like let's say इसको हम यहाँ से इस specific जगह को मैं ना skip कर देता हूँ, इस वाले को मैं erase कर देता हूँ, just a minute, ये कर दिया। एंड एक मैं अपने स्टोरी के लिए, दिस इज लुकिंग वेरी एस्थेटिक सॉर्ट ऑफ, सो व्हाई नॉट टेक अ पिक्चर, क्योंकि इसकी पिक्चर बड़े मज़े की आएगी, क्योंकि स्टोरी पे भी तो डालना होता है राइट। सो या जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक अ पिक्चर। ये किया इस तरीके से, इस तरीके से नहीं, इसको इस तरीके से कर लेते। तो लाइटिंग का भी इशू है यार। हाँ चलो गुड हो गया। सुना, अब हम इस जगह को ना लेट से एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, या फिर अगर हम इसको कहीं और कंटिन्यू कर सकें, ओ लेट्स कंटिन्यू इट अप हियर ब्लैंक पेज के ऊपर। आपने नहीं करना लेकिन हम कर लेते हैं। नाउ वी हैव डन इट टिल हियर एंड लेट्स एज्यूम कि दिस इज़ माय एक्स्ट्रा शीट, ओके। सो एक्स्ट्रा शीट पे लाइंस होंगी बट लेट्स से हम इसको यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज़ माय एक्स्ट्रा शीट। सो हाउ विल आई बी डूइंग इट, एक्स्ट्रा शीट के ऊपर आपके पास यहाँ पे आएगा क्वेश्चन, सो विल बी लाइक एक स्लॉट आएगा क्वेश्चन, तो आपने 15 करके यहाँ पे आपके पास पार्ट वाला होगा, पार्ट को आपने छोड़ देना है, यहाँ पे यू नीड टू राइट द कोड। तो आप सबसे पहले कमेंट डाल के बोल दो, इस तरह बता दो कंटिन्यूड हेयर से, एंड नाउ यहाँ से आपने कोड लिखना है। सो अब हमने ये देख लिया कि वी हैव ऑल दोस फंक्शंस एंड एवरीथिंग। नाउ अब मैंने क्या करना है, अब आई नीड टू सी कि उसने जो इनपुट किया ना, अब आई कैन आइदर मेक यूज़ ऑफ दिस इफ स्टेटमेंट अगेन, जो कि काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो आप इफ स्टेटमेंट के ऑल्टरनेट में आपको बता रहा हूँ कि व्हाट वी कैन डू इज हम केस ऑफ स्टेटमेंट को यूज़ कर लेते हैं। आई विल बी लाइक ओके केस ऑफ ऑप्शंस या केस ऑफ चॉइस, जो मेरा वेरिएबल है चॉइस। अब यहाँ पे मैं कमेंट सबसे पहले ऊपर डाल दूंगा कि चूजिंग द स्पेसिफिक वेरिएबल नहीं शेप स्पेसिफिक शेप। अब जब मैं स्पेसिफिक शेप को करूँगा तो केस ऑफ चॉइस में क्या था, हमने ये बताना था कि इफ़ इट वाज 1
तो आपने कोई चीज़ करनी है, अगर वो अच्छा सॉरी अगेन दिस इज़ माय मिस्टेक, इसको कोटेशन मार्क्स में नहीं करना, वरना वो कैरेक्टर्स बना देगा इसको। 1 तो आपने कोई चीज़ करनी है, 2 तो कोई चीज़ करनी है, 3 तो कोई चीज़ करनी है, एंड लेट से अगर हम ये बोल दें कि यहाँ पे एक फोर्थ ऑप्शन भी हो, लेकिन ये जो मैंने ये बना रहा हूँ नहीं, एक मेन्यू बना रहा हूँ, लेकिन बिफोर क्रिएटिंग अ मेन्यू हमें एक चीज़ समझनी है कि मेन्यू तो चलो मैं इस तरह बना लूँ, आपने यूज़र से वो तो पूछना है ना कि भाई आप एग्ज़िट करने के लिए या क्या, या कुछ इस तरीके से, या फिर मैंने यहाँ पे ये भी तो चेक करना है कि यार ये जो आउटपुट मेरा होगा ये मैं किस तरीके से करूँगा। इसका मतलब व्हेनेवर आई वांट टू आउटपुट समथिंग, तो मैंने ये वैल्यूज़ को किसी चीज़ में असाइन भी तो करना है, क्योंकि फंक्शन से तो कोई चीज़ प्रिंट नहीं होती, इट इज़ ओनली गोइंग टू रिटर्न इट। सो व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं एक वैल्यू लेट से डिक्लेयर करूँगा वेरिएबल, उस वेरिएबल को मैंने नीचे बल्कि किया हुआ है वॉल्यूम, आई नीड टू असाइन ऑल दीज वैल्यूज इनटू वॉल्यूम, बट यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख दूंगा आउटपुट, सही है। या फिर ये आउटपुट वही पिछले वाले के साथ ही अगर इसको मैं थोड़ा सा कंबाइन कर लूँ तो आई कैन ऑल्सो से कि 4 and 4 फॉर एग्जिट, इस तरह कर लो 4 फॉर एग्जिट। आप एक ही दफ़ा आउटपुट लो, बार बार ना लो। हमने ये यहाँ पे कर दिया ना, लेट्स से अब क्योंकि वी हैव एवरीथिंग सॉर्टेड आउट, हम डायरेक्टली केस ऑफ स्टेटमेंट्स में आ जाएंगे। आई विल बी लाइक ओके आई नीड टू मेक यूज़ ऑफ अ केस ऑफ स्टेटमेंट विच विल बी लाइक ओके केस ऑफ चॉइस। वाई? बिकॉज द वेरिएबल विच इज़ बीइंग इनपुटेड इज बेसिकली चॉइस, एंड उसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1, विच बेसिकली मीन्स कि जब मैं 1 करूँ तो मैं क्या करना चाहूँगा, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल है, फंक्शन है, क्या कहते हैं क्यूबॉइड का, उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए। वो मैं अब कैसे करूँगा? अगर मैं क्यूबॉइड को डायरेक्टली लिख लूँ तो उससे तो कोई नहीं होने वाला। आई नीड टू इंश्योर कि मेरा वेरिएबल जो है ना आउटपुट हो रहा हो कोई वैल्यू, तो वो मैं किस तरह करूँगा? आई विल बी लाइक ओके आई नीड टू डू वन थिंग। The thing is, I will be making use of, I can do two things up here. Perhaps I can make a variable directly जिसके अंदर volume के अंदर मैं उसको assign कर रहा हूँ, या I can do one other thing too. I can write volume के अंदर उस value को, let me see, I can do one other thing too. पता है मैं इसी लाइन के अंदर यहाँ पे भी या वो कर सकता हूँ। लेट मी डिस्कस बोथ द मेथड्स। एक तो ये कि मैं यहाँ पे जाके ना डायरेक्टली ये कर लूँ कि आप आउटपुट करो, लेकिन ये स्टेटमेंट काफ़ी वेग हो जाएगी। सो अ बेटर अप्रोच टू दिस विल बी, अ बेटर अप्रोच टू दिस क्वेश्चन विल बी कि अगर मैं यहाँ पे जब इनपुट ले लिया ना सब कुछ, तो मैं यहाँ पे उसके इक्विवेलेंट वॉल्यूम के अंदर वो वैल्यू असाइन कर दूँ। लाइक मैं यहाँ पे लिख दूँ वॉल, और वॉल के अंदर मैं कर दूँ, क्योंकि दिस इज़ क्यूबॉइड, सो आई विल बी लाइक ओके क्यूबॉइड, एंड क्यूबॉइड के अंदर ये मैं डेप्थ ले रहा हूँ तो डी, हाइट ले रहा हूँ तो एच, बी ले रहा हूँ तो बेस, सही है। फिर यहाँ पे भी मैंने यही कर दिया वॉल, एंड वॉल के अंदर मैंने कर दिया लेट्स से दिस वाज व्हाट, दिस वाज अ स्फीयर, राइट ना, दिस वाज अ प्रिज्म, सो अ प्रिज्म, एंड प्रिज्म के अंदर मैं यहाँ पे डाल दूँ डी एच बी, राइट, एंड यहाँ पे मैं कर दूँ वॉल के अंदर डायरेक्टली स्फेयर, एंड स्फेयर के अंदर मैं सिर्फ आर की वैल्यू असाइन कर दूँ। सो ये तरीका काफ़ी आसान हो जाएगा रादर देन इंक्लूडिंग अ वेरिएबल, क्योंकि अगर ऊपर करना हो तो यहाँ पे फिर आपको इफ स्टेटमेंट्स लगा के करना होगा कि उसका वो क्या होगा ना। इफ़ आई एम लाइक केस ऑफ चॉइस आपकी 1 है तो आपने डायरेक्टली कर देना है आउटपुट वॉल, 2 है आउटपुट वॉल, 3 है आउटपुट वॉल, 4 है, इस तरह। या फिर एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आपने वहाँ पे ना असाइन किया हो तो व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं यहाँ पे ये कर लूँ कि हम ना, क्योंकि हमने प्रिंट करना है ना, कोई स्पेसिफिक चीज़ प्रिंट करनी है, तो आई कैन डू वन अदर थिंग। आई कैन से कि यार आप वॉल ऑफ उसके अंदर यहाँ पे असाइन कर दो अपने फंक्शन को, तो आई कैन लाइक फंक्शन मेरा है स्फेयर, एंड यहाँ पे जाके मैं उसको वो कर दूँ कि दिस माइट बी डेप्थ बेस हाइट, एंड अगर 2 आ गए तो वॉल्यूम के अंदर आप असाइन कर दो लेट्स से ये तो सॉरी उल्टा कर दिया, इट्स नॉट स्फेयर, इट्स बेसिकली क्यूबॉइड अप हियर, सो क्यूबॉइड, एंड अगर नहीं है तो यहाँ पे आप कर दो प्रिज्म, अगेन डेप्थ बेस हाइट, डी बी एच इज़ इन शॉर्ट फॉर्म, वरना आप पूरा लिख दो डेप्थ बेस हाइट, क्योंकि हमने उसको जिस तरीके से वो किया तो उसी तरीके से आपने करना वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम के अंदर आप कर दो स्फेयर एंड डेप्थ बेस हाइट, एंड अगर मैं यहाँ पे 4th कर दूँ तो 4th में उसने बोला था एग्जिट, तो एग्जिट का कोई हमारे पास एज इन कोई सेट फंक्शन होता नहीं है, तो आप इस तरीके से कर लो कि आप आउटपुट कर लो, आउटपुट, सही है, एंड आउटपुट के बाद आप यहाँ पे बोल दो दिस कोड हैज़ एंडेड। इसकी मार्किंग स्कीम हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती है एट दिस पॉइंट, क्योंकि 15 मार्क का क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ था, बट ये मैंने आप लोग को करवा दिया। अब यहाँ पे मैं कर दूंगा एंड केस, क्योंकि हमने ऊपर चेक किया था कि हमारे ऑप्शंस 1 से 3 तक रहे, विच मीन्स कि यहाँ पे एक मैंने गलती कर दी थी कि मैंने इसको 1 से 4 तक कर दिया था।
जब मैं ये चेक वो कर रहा था ना लेस देन 4, सो दिस मीन्स आई नीड टू मेक इट लेस देन 5, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन 1 2 3 एंड 4 चारों आने चाहिए, क्योंकि मैं आप लोग के साथ ही कर रहा हूँ. सो दिस इज़ प्रीटी मच कॉमन कि आपके साथ इस तरीके की गलतियाँ ना. इफ़ यू कोड इज टिल दिस पॉइंट आई कैन एश्योर यू कि भाई आपके 10 प्लस तो नंबर इंशाल्लाह है ही है. सही है. लेकिन अब चलो हमने इसी को कंटिन्यू कर दिया, हमने ये कर दिया. नाउ आई विल बी लाइक ओके वट एवर आपकी केस ऑफ ऑप्शन हुए उस वॉल्यूम के अंदर वो आ जाएगा. नाउ यू विल बी लाइक ओके आउटपुट the volume of your selected shape is of your selected shape is. सही है. एंड यहाँ पे आप उसको कर दो कॉमा के बाद वॉल एंड देयर यू गो, आपका ये कोड चल गया. या फिर अब इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं. यहाँ पे या तो मैंने आउटपुट कर दिया कि दिस कोड हैज़ एंडेड, बट यू नो वन प्रॉब्लम, इवन अगर मैं 4 दबा दूँ दिस लाइन इज़ गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, विच मीन्स इसके अंदर एक प्रॉब्लम है. इसका ये मसला है कि यार जब तक मेरा इनपुट 4 आ रहा है ना, तो ये तो सारा का सारा इवन 4 भी आ रहा है, ये लाइन तो एग्जीक्यूट हो रही है. तो इसको मैं किस तरह छोड़ूंगा? इसको करने का तरीका ये कि अगर मैं इस सब को ना रिटर्न फंक्शन में ले आऊँ, मतलब ये कि ये कोड हमेशा चलना चाहिए अनटिल और अनलेस. अगर आप स्टेटमेंट पढ़ो आपको बोले द प्रोग्राम कंटिन्यूस, द प्रोग्राम कंटिन्यूज अंटिल द यूज़र इनपुट्स द स्टॉप ऑप्शन. अब यूज़र जब तक ना चाहे तो इट शुड रिपीट. तो अब ये मैं कैसे करूँगा? उसके लिए देर इज़ अ प्रॉपर वे. वो ये होगा कि अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाऊँ, आई विल बी मेकिंग यूज़ ऑफ अ रिपीट लूप एंड दैट इज़ गोइंग टू रन टिल द पॉइंट कि मेरा ऑप्शन 4 ना इनपुट हो जाए. सो आई विल बी लाइक ओके रिपीट. आप यहाँ पे जाके आप बोलते हो इनपुट चॉइस. सही है, कोई नहीं, फिर से चॉइस इनपुट कर लो. सही. या वट अदर थिंग यू कैन डू इसके इसी रिपीट को, बल्कि ये यहाँ पे ना करो, अ बेटर अप्रोच विल बी कि आप इस रिपीट फंक्शन को जाके जहाँ पे हमने पहले वो किया था ना, इनपुट ले रहे थे, कहाँ पे हमने स्टार्ट किया था इनपुट लेना, हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे इससे पहले ये जो आउटपुट में ले रहा हूँ ना, इस पॉइंट पे आपने कर देना एक रिपीट फंक्शन. सो हम यहाँ पे एक रिपीट वो ले रहे हैं जो कि सारा का सारा, अगर मैं इसको बाकी को इरेज कर दूँ, बल्कि जैसे पहले था उस पॉइंट तक पहुँच जाऊँ कि वो जो पीछे मैंने मिटा दिया था कंट्रोल जेड ओके जहाँ तक मैं था ओके कंट्रोल जेड. नाउ मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस आउटपुट से पहले रिपीट वो कर दूँगा, ये यहाँ पे रिपीट. ओके रिपीट. एंड नाउ दिस रिपीट लूप हैज़ टू रन अंटिल 4 इज इनपुटेड, क्योंकि जब तक मैं 3 करूँगा 2 कर दूँगा वो आउटपुट दे देगा, लेकिन देन इट हैज़ टू अगेन रिपीट, वो फिर मुझसे वैल्यूज़ मांगना चाहेगा. सो इट इज़ गोइंग टू रिपीट, उसके अंदर ये सारा कुछ होगा, केस ऑफ चॉइस होगा अंटिल मैं बोलूँ कि योर चॉइस इज़ इक्वल टू 4, बिकॉज द मोमेंट आपके रिपीट लूप के अंदर वो ये चेक करेगा कि योर चॉइस इज़ इक्वल टू 4, इट इज़ गोइंग टू एग्जिट दिस स्पेसिफिक कोड. एंड जैसे ही वो इसको कोड को एग्जिट कर जाएगा तो यू विल गेट टू नो कि यू आर नो लॉन्गर रनिंग इट. एंड दिस इन माई ओपिनियन मार्क्स द एंड ऑफ योर 15 मार्क क्वेश्चन. इधर कोई कमेंट्स हम डालना चाहे तो हम डाल सकते हैं. चूजिंग द स्पेसिफिक शेप, यहाँ पे मैं डाल दूँ आउटपुटिंग द वैल्यू, एंड दिस इज़ वट योर 15 मार्कर इज़. नाउ इट मे सीम लाइक कि अगर इसको मैं अभी मार्क करूँ ना, तो दिस कैन बी अ वेरी सॉलिड 15 मार्कर, आपको पूरे मार्क्स इंशाल्लाह इस पर मिल जाएंगे इंशाल्लाह. लेकिन लेट्स से अगर इसका आप हाफ भी कर लो ना, अगर इसका हाफ भी बंदा कर लो, विच मीन्स अगर आप सारा भी ना करो, यू जस्ट डिक्लेयर द फंक्शन, यू डिक्लेयर दिस वेरिएबल्स, ऐड अ फ्यू कमेंट्स, यू आर स्टिल केपेबल ऑफ स्कोरिंग लाइक 7 to 8 मार्क्स. मैं अभी आपको इसकी मार्किंग स्कीम दिखा देता हूँ, बट इट्स द क्लास हैज़ लिटरली वेंट फॉर लाइक 1.5 hour राइट नाउ. लेट्स डिस्कस इसको सेव कैसे कर सकते हैं. ओके नहीं कर सकते. लेट मी टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस पॉइंट 2 ताकि आप लोग को फिर यहाँ से भी आप चेक कर सको. नाउ लेट्स डिस्कस इट्स मार्किंग स्कीम. Now your marking scheme of this paper does not include the code, क्योंकि ये इसके अंदर ये हो गया था कि if you see कि आपके फंक्शन के 3 पैरामीटर्स थे. In your syllabus you will only be asked for a maximum function of 2 parameters. इस वजह से इसको रिमूव कर दिया था and it was not marked. देखो it was the issue was basically कि वो था, लेकिन यहाँ पे मैं let me see 15 mark grading rubric आपको मैं वो दिखा दूँ कि ये मार्किंग किस बेसिस पे होती है. I want to 15 mark computer science. Okay, we don't have any such thing. Let me check some other paper. Let's check 0478. Okay, and you can see कि अगर हम यहाँ पे करें 0478 summer 23 का चेक कर लो. Okay, let's check summer 23. Now if I look at this paper and इसकी मैं मार्किंग स्कीम खोलूँ, इसके अंदर देयर शुड बी अ स्पेसिफिक ग्रेडिंग की. क्या आप इसको मार्क कैसे करोगे? एज पर
द एग्जामिनर्स आइडियोलॉजी कि एग्जामिनर आपको किस चीज़ के ऊपर मार्क्स देगा. एट दिस पॉइंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को एक्सप्लोर करें, विच इज़ वाई दिस क्लास इज़ लिटरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें पता तो लगे कि भाई आपके मार्क्स किस बेसिस पे है, किस बेसिस पे नहीं हो रहे, क्या क्या सीन है. सही है. एंड लाइक लिटरली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये फुल स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा? ओके या नाउ इट्स बीइंग डन. लेट इट गेट लोडेड एंड मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ कि ये नाउ लुक अप हेयर, दिस इज़ बेसिकली योर ग्रेडिंग रूब्रिक. सो यू आर बेसिकली अवॉर्डेड मार्क्स बेस्ड ऑन दीज टू थिंग्स. एक तो आपको ये बोलते हैं कि आपने AO1 को देखना है, AO1, AO2 एंड AO3. नाउ योर AO1 is basically बल्कि sorry, there is no AO1. AO1 पहले पार्ट में. You have basically these two sections, AO2 and AO3. Now it says कि अगर आपने ये चीज़ें की है तो आपको AO2 के मैक्सिमम 9 मार्क्स मिलेंगे एंड AO3 के 6 मार्क्स मिलेंगे. अब किस तरीके से? नाउ यू नीड टू बेसिकली मेक यूज़ ऑफ 3 रिक्वायरमेंट्स. अब ये हर क्वेश्चन के अलग होंगे. यू नीड टू मे बी मेक यूज़ ऑफ दिस. ये 3 क्वेश्चन अगर आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली तो आपका गुड सीन. लाइक इन आवर एग्जाम्पल जो हमने कोड की है उसके अंदर दिस वुड हैव बीन डिक्लेयरिंग द फंक्शंस. सही है. मे बी मेकिंग यूज़ ऑफ द मेन्यू ऑप्शन. सही है. ये जैसे देखो डिस्प्ले मेन्यू एंड मेक अ सिलेक्शन, चेक अकाउंट नंबर. अब ये तो दूसरा कोड है लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट में दिस इज़ बेसिकली सिमिलर टू सेइंग कि आप वो कर रहे हो क्रिएटिंग दीज फंक्शंस. एंड मे बी हमारे वाले में कोई और भी आ जाए कि कैलकुलेटिंग या कोई फंक्शन के ऊपर कोई अगर हमारे वाले सिनेरियो में नहीं करता लेकिन इस तरीके से करना हो तो क्या होगा. सो ना इफ़ यू मेक यूज़ ऑफ, नाउ लुक एट दिस. अगर आप एक प्रोग्रामिंग टेक्निक को भी यूज़ कर लो, विच मीन्स कि अगर आप एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करो, एक कोई लूप चला लो, कोई आउटपुट कर दो, कोई इनपुट कर दो, या एनी सच थिंग लाइक इवन इफ यू टेक जस्ट अ सिंगल इनपुट एंड आउटपुट वैल्यू, यू कैन गेट 1 to 3 मार्क्स. इट्स अ प्रीटी गुड रेंज. इट्स अ प्रीटी गुड रेंज. क्योंकि जो हमने अभी कोड लिखा है, यू सी कि हमने उसके अंदर सिलेक्शन की, इफ स्टेटमेंट यूज़ किया, केस किया, वी मेड यूज़ ऑफ लूप्स, वी टुक इनपुट आउटपुट, वी डिडंट मेक यूज़ ऑफ काउंटिंग एंड टोटलिंग क्योंकि इट वाज नॉट रेलिवेंट टू आवर स्पेसिफिक कोड. लेकिन आई गॉट लाइक परफेक्ट 3 मार्क्स. लाइक यहाँ तक तो मैंने सब कर दिया. इसने बोला एक यूज़ करना, वो बोले अगर आप 4 to 6 वाले पे उसके ऊपर देखें ना, हमने ये तो परफेक्टली कर लिया. Let's look at this. Some programming techniques have been used which are appropriate to the problem. इसका ये मतलब है कि अगर आपको कोड के अंदर कोई भी समझ ना आ रही हो, कुछ भी समझ ना आ रहा हो, even if the code doesn't require, लेकिन आप ये कर लो कि 2x के अंदर x+1 कर दो. What is this? x के अंदर x+1. This is basically what? This is basically counting. बिल्कुल. Now this is counting. When this is counting, हम काउंट करें या वी आर बेसिकली काइंड ऑफ, अगर मैं टोटलिंग करना चाहूँ तो टोटलिंग वाले कर लो. अगर वो क्वेश्चन के रेलिवेंट ना भी हो, आपको कुछ नहीं आ रहा, यू आर ब्लैंक, बट यू मेक राइट वन ऑफ दिस, आपको 1 से 3 मार्क इसके मिल जाएंगे. नाउ व्हेन यू मेक यूज़ ऑफ द सिनेरियो टेक्निक जो कि रेलिवेंट हो, लाइक हमने प्रॉपरली लूप चलाया, प्रॉपरली इनपुट आउटपुट लिए, आपको 4 to 6 मिलेंगे. और फिर अगर आपने हमारी तरह जैसे वी मेड यूज़ ऑफ लाइक 3 of these things all relevant to the code, so you're going to get from 7 to 9, which means कि the range of programming techniques which are being used are appropriate to the program. आप खुद से कुछ नहीं करें, जो भी करें इट्स रेलिवेंट, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. फिर आप अगर कहीं किसी चीज़ के अंदर वैल्यू स्टोर करें, आपको उधर मार्क्स मिलेंगे. मतलब आपने कोई वेरिएबल्स डाले हैं, कोई डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक एरेज, कोई ऐसी चीज़ आपने यूज़ की है या नहीं. हमारे सिनेरियो में तो एरेज थे ही नहीं, हमने वेरिएबल्स यूज़ किए, गुड. अब उसमें स्टोर्ड अगर अप्रोप्रिएटली नहीं है, फिर भी आपको 1 से 3 मार्क्स मिल जाएंगे जस्ट फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल और उसके अंदर वैल्यू असाइन करने के. सही थोड़ा सा किए हो, थोड़े से वो आपको मिल जाएंगे जो कि थोड़ा सा सिनेरियो के रेलिवेंट हो. लेकिन आपने सारा डेटा स्टोर कर दिया, जैसे हमने वॉल्यूम का किया, हमने डेप्थ का किया, हमने बेस का किया, एंड सो ऑन, एंड ऑल ऑफ देम वाज रेलिवेंट टू द सिनेरियो, यू आर गोना गेट अ परफेक्ट 9 on 9 फॉर योर AO2. नाउ दिस इज व्हाट वेयर ऑल योर कोडिंग कम्स अप. दिस इज योर कोडिंग सेक्शन. जितना सूडो कोड लिखना है उसके मार्क्स यहाँ पे होंगे. जो रिमेनिंग आपके पास 6 मार्क्स है ना, जो रिमेनिंग 6 मार्क्स हैं वो आपके कोडिंग के नहीं है, वो आपके बेसिकली प्रेजेंटेशन के, आपने कोड लिखा कैसे. एंड मे बी दिस इज समथिंग जो आपको टीचर्स कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि यार आपने क्या लिखना है. नाउ द रिमेनिंग 6 मार्क्स इज कि यार आपके कोड के अंदर इट शुड गिव प्रॉपर इवैल्यूएशन के मतलब बंदा उसे पढ़े, उसे समझ आए. अब हम देख रहे हैं कि अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई कोड कमेंट्स नहीं है, दिस इज़ समथिंग बैड. आपने आइडेंटिफाई नेम सही से नहीं यूज़ किया तो दिस इज़ रॉन्ग. कोई सेंस नहीं बन रही तो इसके ये इनएक्यूरेट है, गलत कोड लिखा है, या फिर आपने कोई भी सोल्यूशन अटैम्प्ट करने की कोशिश किया तो आपको फिर भी 1 से 2 नंबर मिल जाएंगे. लाइक व्हाट इज़ अ परफेक्ट कोड? इट हैज़ बीन फुली कमेंटेड.
आप इन चीज़ों को देखें, इट्स जस्ट फॉर योर ओन आइडियोलॉजी कि आपने किस तरह लिखा है, लेकिन आपने फुली कमेंट किया, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया मैं करना क्या चाह रहा हूँ, आपको ये करना चाहिए। मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स, मतलब आपके वेरिएबल इस तरह हो कि जैसे मैंने वॉल्यूम लिखा या मैंने वॉल लिखा, इंडिकेटिंग ये वॉल्यूम कर, इट्स नॉट लाइक एक्स के अंदर में कोई चीज़ डालू ना, एक्स डज नॉट मीन एनीथिंग। अगर आपने एक्स वाली बात की दैट एक्स इज गोना कम अप हेयर, दैट सम आइडेंटिफाई नेम यूज आर अप्रोप्रिएट, वरना आपके उनके कोई मीनिंगफुल नेम ही नहीं कर रहे, तो मेक श्योर कि आप जब भी 15 मार्क का क्वेश्चन को डिस्कस करें उसके अंदर आप प्रॉपर नेमिंग यूज करो, सूटेबल आइडेंटिफायर, सही, लाइक ऑल ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर यूज हैव मीनिंगफुल नेम, सही। फिर आपका लॉजिकल ऑर्डर इज नेसेसरी। लॉजिकल ऑर्डर का ये मतलब है कि जो हमने कोड अभी लिखा है उसके अंदर आप मुझे एक बात बताओ, ऐसे थोड़ी है ना कि मैंने मेन्यू ऊपर बना दिया कि आप चूज़ करो एंड देन आई एम टेकिंग इनपुट फॉर चॉइस। अगर आपने कोड के अंदर इस तरह कर दिया कि आपने पहले मेन्यू बना दिया और फिर इनपुट कर लिया चॉइस का, तो दिस इज इलॉजिकल, बिकॉज आप जो मेन्यू के अंदर वो चूज़ करें तो वो तो चॉइस के बेसिस ही करें, तो उसके लिए इट्स नेसेसरी कि आपका इनपुट पहले आ रहा हो। इट शुड नॉट बी आइदर वे अराउंड। अगर आप उल्टा करें तो उसके ऊपर भी आपके मार्क्स कट ऑफ होंगे। तो इफ़ योर कोड इज ऑल्सो इन लॉजिकल ऑर्डर, अब इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका कोड सही हो, आपका कोड शायद गलत भी हो, लेकिन वो फिर भी लॉजिकल ऑर्डर में, तो आपकी इस चीज़ के आपके मार्क्स मिल रहे हैं आपको, समझ रहे हो। देन इट इज सेइंग कि द सोल्यूशन इज एक्यूरेट, लाइक मतलब अगर आपके कोड सारा का सारा कुछ परफेक्ट करे, परफेक्टली कोई गलती नहीं है, तो आपको इसके पूरे मार्क्स मिले। एंड अगर आपका कोड थोड़ा सा भी गलत हो, इनएक्यूरेट हो, कोई चीज़, लेट से अगर मैं ये बोलूँ मेरा सारा फंक्शन वगैरह सब सही है, लेकिन मैंने जाके वो रिपीट अनटिल वाली बात मिस कर दी कि रिपीट अनटिल का चॉइस इक्वल्स टू 4, लेट्स से ये चीज़ मुझसे रह गई, तो अब मैं ये नहीं कि मेरे सारे नंबर कट हो जाएंगे, आई माइट बेसिकली गो फ्रॉम 5-6 टू मे बी 4 वाला सेक्शन, सो रादर देन लाइक गेटिंग 15 on 15 आई एम नाउ लाइक मे बी गेटिंग 13 on 15, लेकिन बाकी सब चीज़ें सही है, तो इसके ऊपर इतना वो नहीं होना। लेकिन इट इज सेइंग कि अगर आपका कुछ पार्ट गलत हो, लाइक लाइन्स ऑफ कोड विद सम कोड दैट लॉजिकली परफॉर्म टास्क गिवन इन द सिनेरियो, लाइक थोड़े से इस तरह है कि उसके अंदर कुछ आधा कोड सही चले कुछ आधा कोड गलत चले, तो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने माइनर गलती की है, लेट से इस तरह की कि एक्स के अंदर आपने डाल दिया एक्स प्लस लिख दिया +2, या फिर इस तरीके से वाली गलतियाँ तो नहीं होंगी। लेट से हम ये बोल दें कि हमारे सिंटैक्स गलती इस तरह हो जाए कि अगर मैं ये बोलूँ कि एक्स के अंदर इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 कर दो, तो यूजुअली वी से कि आपने जब वैल्यू असाइन करती है हम ये यूज़ करते हैं, राइट, बट आपने इक्वल्स टू कर दिया, तो इसके ऊपर भी इतना मसला नहीं बनना, क्योंकि वो बोल देते कि वी आर गोइंग टू बी इग्नोरिंग माइनर सिंटैक्स एरर्स। एंड फिर फाइनली ये कि अगर आपके कोड वो जो आपसे करवाना चाह रहे हैं वो सही तरीके से आपका सिनेरियो के सारे टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो आपको परफेक्ट 6 on 6 इधर मिलने चाहिए, जिसमें से अगर आपको थोड़े से सही चल रहा है थोड़ा सा नहीं चल रहा, तो आपके 4/6 तो फिर भी बन रहे हैं। एंड अगर फिर कुछ भी नहीं आ रहा और आपने खुद से कोशिश की है, कमेंट्स जहाँ डाल सकते डाले, कुछ ना कुछ किए, एंड बाकी कोड आपने थोड़ा बहुत भी लिखा है, कुछ ना कुछ वो किए, तो यू आर स्टिल गेटिंग लाइक 2/6। नाउ यू जस्ट टेल मी, आप 2 नंबर यहाँ से फॉर नो रीज़न उठा रहे हैं, एंड लेट्स से आप 3 नंबर यहाँ से, तो आउट ऑफ 15 यू आर लाइक लिटरली गेटिंग 5 or 15 फॉर जस्ट एक्सप्लेनिंग योर कोड एंड डूइंग समथिंग जो कि आपको आते हैं, लाइक रैंडम आप कुछ भी कर लो, यू आर स्टिल गेटिंग 5 on 15, विच मीन्स कि अगर आप रिमेनिंग 60 मार्क्स वाले पेपर के अंदर इवन इफ यू स्कोर लाइक 45 out of 60 and then you like score 5 up here, so you are getting 50 out of 75. And again, if you ace your P1 by scoring like 60, so 60 plus 50 is like 110, which is a confirm A, and sometimes if the paper is difficult, this is also your A star. सो इट्स नॉट समथिंग जिससे आपने डरना है कि यार मुझसे 15 मार्कर नहीं हो रहा तो मेरा A स्टार नहीं आ सकता। यू नीड टू इंश्योर कि योर अदर पार्ट आर सुपर स्ट्रॉन्ग, कि अगर 15 मार्कर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता भी है तो आपके पास अच्छा खासा रेंज है ना। आप यहाँ पे देखो 15 मार्कर में कितने मज़े से वो मार्किंग करता है, लेकिन आप कॉमेंट्स वॉमेंट्स जो मीनिंगफुल आइडेंटिफाई उनसे अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करो। अगर कोड नहीं भी आते इन चीज़ों को तो यूज़ टू करो कि आपका परफेक्ट कोड चल सके। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि इट कैन बी डायरेक्टली एडेड ऑन टू द नोट्स फाइल, आप लोग को थोड़ी समझ आए कि वो करना क्या चाह रहे हैं। एंड विद दैट आई विल बी एंडिंग द रिकॉर्डिंग एंड विल बी पोस्टिंग इट ऑन द गूगल क्लासरूम because perhaps this has been a very long recording session, right? It's for like a 1.5 hour, but I hope it was lovely. And if you are later on watching this recording on maybe YouTube someday, so don't forget sharing the video with others and dropping a like, and also if you can share your feedback. With that, everybody, take care. Allah Hafiz. Bye bye. Allah Hafiz.